Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Podcast with Champions with your host, Navjot Singh. As we have seen in the previous versions of our podcast, we have been bringing people who have, left a trail with their body of work and inspired the youth of this country to live a life of some value. It fills me with absolute honor and privilege to introduce to you our today's guest, Major Avinash Sahni, sir, who is an ex-Special Forces paratrooper. He he has a lot of accolades to his credit. I will just try to list down a few. He served in the CICT operations in the Northeast, being an alumni of National Defense Academy Khadakwasla and IMA Dehradun. He went on to serve close to a decade and more than a decade in the prestigious Indian Army and rendered his services. He happens to be highly decorated and expert paratrooper and a team commander. He's a reconnaissance expert and has to his credit more than 50 free fall jumps. He currently he's serving as a deputy general manager in the Adani Group in Ahmedabad. So welcome to the podcast, sir. Thank you for such a lovely introduction. Good evening, everybody. And I should also take this opportunity to tell you, in fact, that the kind of the effort that you've taken to dress yourself is phenomenal. Thank you, And sir. I like people who take extra who put in extra amount of effort in dressing the right way. So Thank you, thank you, sir. lot of respect for that as well. And uh, that's it. Let's begin the conversation. Sir, I have this ritual or a custom, you can say, that I start my podcast with a poetry. So this one is dedicated to all the special forces people out there and all the people who have the love for the motherland. So it goes like, तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, ना ही मस्जिदों ने कभी सजदा किया है। तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, ना ही मस्जिदों ने कहीं कभी सजदा किया है। मगर मगर खुदाओं से बढ़कर जो रुतबा है, मगर खुदाओं से बढ़कर जो रुतबा है, जमीने हिंद ने वो मर्तबा तुम्हें दिया है, जमीने हिंद ने वो मर्तबा तुम्हें दिया है। Ladies and gentlemen, Major Avinash Sahni, it's the honor and privilege. So, sir, if you can tell a little bit about, we won't dwell too much into what have already been discussed in other platforms. Briefly, if you can tell for the fresh audience who would be listening to you a little bit about your background, about your village, about your town, a little bit about your family. Not we'll move to other questions. Not many people know that I come from Odisha because of my surname, probably Sahani. In Odia, it is Rana, Ana. In Hindi, we have this Rana. In Mhm. Odia, also, we have this alphabet called Rana. So in Odia, it is Okay, sir. Sahani. And when it gets translated, I mean, when you translate into Odia, I mean, sorry, English, it becomes Ni. So that is why the confusion. So otherwise, I come from Odisha, the land of Kalinga. I was born in a place called JK Pur. It comes under the umbrella of Raigada district. And I did my initial education there in Lakshmipat Singhania Public School. Went to Sanik School, Bhubaneswar in 1999. Joined there in class 6. Studied there for 7 years. Cleared my NDA exams, both written and SSB. In the first attempt, joined NDA in 2006. Passed out from NDA in 2009. 2010, I got commissioned in the month of June. Had to do two probations. Couldn't complete the first probation because of an injury. Completed the second probation in the second opportunity. The next year, 2011, I was marooned probably around, I think, in the month of October, if I'm not wrong. I think the probation started in June and then October. And from there, the journey started. I got ample opportunities, and I also believe I could justify the opportunities that were given to me by my seniors. Did n number of courses, did my YOs, commandos, my diving underwater diving course in Kochi, did my recce surveillance and target designation course, did an amphibious course, did my military free fall basic and advanced, did my team commander and junior command, a lot of courses because
Right, sir. If you do your courses, you stay updated. You stay you learn the contemporary practices that are in vogue across the world. Right, sir. You get a lot of insight into what the special forces operations are all about. Uh, Right. just to clarify, many people think that the CICT is what we do. However, that is not the primary tasking of the special forces. Any military for that matter in this world, the primary task is always the conventional task that we or the military is supposed to safeguard the territorial integrity against any foreign aggression. However, if you have insurgency issues, counter-insurgency, counter-terrorism issues in your country, the military steps up, does the fighting. In return, while the military is fighting, the military also learns a lot because you are continuously fighting, knowing your enemy, learning from your mistakes, whatever strategies or what I'll not say strategies, whatever tactical things you want to see whether they're working out, whether they are worthy of your enemy or not. You can actually put them on ground and test. So yes, we have I had my share of counter-insurgency tenures. I had my share of my tenure serving in the conventional areas against our adversary, the Chinese border on the other side, on that side of the country, northeast part of the country. And I'm happily married. I have two kids, a daughter who turned 6, finished, she had a fifth birthday a month ago, a son who turned 1 yesterday. Today is Oh, 10th, yes. So many I congratulations for that. thank you. I think, and that is it. That is it. राइट सर, राइट सर। सो सर, हमने जैसे देखा कि आप फोर्थ जनरेशन फौजी हैं। As I can recount, you have 3 generations of army already serving the country, whether in the British Indian Army or in the Indian Army. तो सर ये फौज में आना, was it like always the option? Was it always that you always wanted to get into फौज? Or if Major Sani was not into the फौज, what would the other career option that you would have chosen for yourself? Uh, I think when a child is growing up, whatever he sees around himself or herself makes a lot of impact. Has a considerable amount of effect on his or her mind. So when I was growing up, I was growing up listening to the stories of Ramayana, Mahabharata, and Paramveer Chakravartis, be it Major Somnath Right, Sarma or Lance Naik, right, Albert Ekka, or CQMH Abdul Hamid. I somehow saw my elder father in uniform. I knew that my great grandfather was in army, and I was also full of energy as a child. But I mean, you can distinctly see that a child is full of energy. He wants to do something which is physically more demanding, and if he is interested in sports or not, so you can see that inclination of a child. And I right, sir. always had that inclination towards sports, outdoor activities, something which is more physical in nature. Not that I was not good in studies. I was always there in first 5 ranks in studies as well. That is, I attribute that to the Almighty, that He's been kind enough to give me that much gray matter. Right, right, And sir. as it is, I had a legacy of serving in the military. I Right, sir. somehow thought I would do justice if I go to the military. That is how I thought I should go to the military. वंडरफुल सर। सर, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है या एक अच्छा फौजी? सबसे पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है. See, sorry, I didn't answer your second part of question. If I was not in the army, Yeah, what I would have yes, done? I would have right. probably become a doctor. I Okay, liked lovely. I liked bio, and I had a wonderful teacher. May God bless his soul, Mr. A.K. Rath. I would have probably done some amount of hard work in the direction of becoming a doctor. एंड Wonderful, sir. अच्छा इंसान एंड अच्छा फौजी का ऐसा है कि भैया देखो, अच्छा इंसान इज द कोर ऑफ एवरीथिंग. फौज इज लाइक अ शेप. लेट्स से इट्स लाइक अ स्क्वायर.
a guy who's a very good circle or a very good triangle, perfect triangle, right angle triangle, या जो भी isosceles triangle, जो भी whatever triangle, or a very nice circle or a very nice hexagon will not fit in. इसका मतलब ये नहीं है कि he or she is not a good guy or is not good enough. फौज Right. इज वो एक खांचा है, हो सकता है कोई इसमें फिट हो सकता है कोई इसमें फिट ना हो, फॉर वट एवर रीजन. कोई ओवर क्वालिफाइड है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, किसी में इंटेलिजेंस ज्यादा है बट उसमें शायद लीड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, किसी में शायद लीड करने की कैपेबिलिटी है बट अच्छा टीम मेंबर बनने की काबिलियत नहीं है. देयर आर Right. एन नंबर ऑफ थिंग्स. सो सो इट डज नॉट मैटर वेदर आपने फौज ज्वाइन किया है कि नहीं किया, बट व्हाट मैटर्स इज इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कि whether you are a good man, whether you are a good human being or not. When I say good human being, I think there's no rocket science. हर घर में हर किसी के माँ बाप वही चीज बताते हैं, सच बोलिए, to an extent as in you don't harm others, है ना. You don't cheat, you don't steal, you don't pull somebody down, you don't go and talk bad about somebody, I mean behind his back. These are the basic tenets. So अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, I believe. उसके बाद if you are cut out for military, you will. If not, then probably you'll go out and excel like Dr. APJ Abdul Kalam or Rahul Dravid. Probably they also tried for the military and they did not make it, but they have done phenomenally well outside, exceedingly well. Right. So we have seen that sometimes youth may, let's take this conversation a little further from here. We have seen youth who get a little disheartened. For example, be it trying for the SSB or for the civil services or for any other career that they want to choose. तो वो अपनी वर्थ को एक एग्जाम से जोड़ के देखना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनका मनोबल नीचे गिरता है. वो एक देश का जैसे हम कहते हैं 65% हमारा यूथ है, दैट इज अंडर 35. दैट इज द वी हैव द यूथ बल्ज डेमोग्राफिक डिविडेंड वी हैव. तो उस यूथ को एक प्रोत्साहित करने के लिए या उनको एक मोटिवेटर रहने के लिए व्हाट डू यू थिंक वी कैन बस्ट दिस मिथ? बिकॉज मैं अभी एक और पॉडकास्ट में भी, एक मेरे फ्रेंड है वर्ल्ड बैंक में, उन्होंने काम किया, तो आई वाज डिस्कसिंग विद हर आल्सो कि व्हाई डू वी नीड टू ब्रेक दिस मिथ ऑफ टाइटल्स. वी डोंट नीड अ टाइटल टू लीड, वी डोंट नीड अ रैंक टू लीड. वी ऑल आर लीडर्स. एक स्वीपर का भी शायद रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक कंपनी के सीईओ का है. तो ये हमारे देश में जो डिग्निटी ऑफ लेबर का थोड़ा सा एक जो कॉन्सेप्ट को और वेहमेंटली प्रोपगेट करने की जरूरत है. और दूसरा एक मतलब ग्लोरीफाइंग सर्टेन थिंग्स एंड बिलिटलिंग अदर. तो इस तरह से आपका थोड़ा सा आई वांट, बिकॉज यूथ जब मैं बात करता हूँ उनसे तो वो ओवर पैशनेट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल उनको पैरा एसएफ बनना है या आईबी ज्वाइन करना है या कहीं आईपीएस बनना है या कुछ बनना है, ओवर पैशनेट हो जाते हैं. और वो चीज शायद उनके खुद के लिए या देश के भविष्य के लिए शायद उतनी ठीक नहीं. So there are multiple things to this Right. phenomena which is happening. सबसे पहले तो भैया, if you have not cleared an exam, if you have not achieved what you are wanting to achieve, इसमें दुख होना बहुत ही नॉर्मल चीज है. Yes. भैया अगर आपने 10 घंटे खाना नहीं खाया और आपको भूख लग रही है, इसमें डिप्रेस्ड होने वाली कोई बात नहीं कि मुझे भूख लग रही है. इट्स अ बायोलॉजिकल फेनोमेनन. आपको कुछ अचीव करना था, आप अचीव नहीं कर पाए. आपने कितना हार्ड वर्क किया मुझे नहीं पता, वेदर इट वाज देयर इन योर डेस्टिनी, दैट आई एम नॉट अवेयर, बट उसमें डिसहार्टेंड होना बड़ा ही नॉर्मल चीज है. मैं भी डिसहार्टेंड होता हूँ, लियोनेल मेसी भी डिसहार्टेंड होता है, लुइस हैमिल्टन भी डिसहार्टेंड होता है, राफेल नदाल भी डिसहार्टेंड होता है व्हेन ही डज नॉट विन हिज चैंपियनशिप. उस डिसहार्टेंड वाली फीलिंग को अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे ले जाकर सुसाइडल होना या ये सोचना कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज फुलिशनेस. यू हैव वन लाइफ, यू हैव वन कॉन्शियस लाइफ. अगले जन्म में आप क्या बनेंगे, पिछले जन्म में क्या थे, आपको याद नहीं. इस जन्म में आप क्या है, क्या कर सकते हैं, वो आपके, इट इज विद इन द ग्रास्प ऑफ योर हैंड, विद इन योर रीच. इफ यू हैव नॉट अचीव समथिंग, इट्स ओके. आप 1 महीना ब्रेक लीजिए, अपना गम मनाइए, जैसे भी आपको फीलिंग्स वेंट करनी है उसको वेंट करिए, इट्स ओके. लड़ाई में भी जब आप अटैक करते हैं, यू डोंट सक्सीड, यू फॉल बैक टू योर फर्म बेस. You take some time, you get back your resources, your ammunition, you get your people back on their foot. Wounded को आप replace करते हैं, dead को replace करते हैं, and then you relaunch the attack.
सो डिसहार्टेंड होना बहुत ही नॉर्मल चीज है, होना भी चाहिए, दैट इज द नेचुरल कोर्स। बट आज के दिन में जमाने में प्रॉब्लम क्या है, आई एम सॉरी, प्रॉब्लम है सोशल मीडिया का। मैंने एग्जाम क्लियर नहीं किया, लेट्स से किसी और ने एग्जाम क्लियर कर लिया, उसको सोसाइटी या सोशल मीडिया या जो भी चढ़ा देता इसमें है, से ऊपर चढ़ा इसमें से देता है। एग्जैक्टली इसमें से जो पैसे बना रहा है, वो एक ऐसा स्टोरी वीव करता है कि इफ यू हैव नॉट डन दिस, यू आर नो वन, यू आर नोबडी। राइट सर। सो भैया, God has given you a tool to enjoy. The tool is for recreation. The tool is to sit back and take the time off your studies या hard work या जो भी आप जिस भी कमिटमेंट जो भी ऑब्लिगेशन में आप बिजी हैं, आप अमृत को विष में खुद ब खुद टर्न कर रहे हैं आप। यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, द सेकंड प्रॉब्लम विद दिस, विद टुडेज यूथ और टाइम जिसमें हम रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बूढ़ा हूँ, 15 साल पहले मैं भी इसी एज में था, बट फॉर्चुनेटली इंटरनेट इस फ्रैंकेनस्टीन रूप में नहीं था। इट वाज नॉट यस ईटिंग सर, अस, नॉट फ्रैंकेस्टीन किलिंग अस, मॉन्स्टर बन गया वो। मॉन्स्टर। हमको आदत हो गई वैलिडेशन की। यू नो व्हाई Yep. so many people are on steroids, body building. I am not against bodybuilding, I am not against anything. Who am I to be against anything? Where is the problem? The problem is social validation. The problem is shortcuts. 3 महीने में मुझे बॉडी बनाना है, 3 महीने में मुझे वेट लूज करना है। भैया 18 साल आप घर में बैठ के भुजिया नमकीन खाते रहे, केक और तले हुए पूरियां खाते रहे। 6 months time when you join college, you see, oh, you're not getting enough attention. Oh, क्या करूं? I need muscles. How do I get muscles? 3 महीने में मैं जिम यू गो टू जिम, 2 महीने आपकी बॉडी में कुछ नहीं होता, क्योंकि नहीं होगा। हमने 15 साल तपाया है सैनिक स्कूल दिनों से, तब हमारे पास जो थोड़े बहुत मसल्स बने हैं वो बने हैं, एंड इन द राइट एसएस व्हाटएवर। लेकिन इनको 3 महीने में रिजल्ट चाहिए, कैसे होगा? देन यू ऑप्ट फॉर शॉर्टकट्स, इंजेक्ट स्टेरॉइड्स, गेट दोज मसल्स, गेट बिकम अ स्टार, जो भी है व्हाटएवर, जो भी है व्हाटएवर। एंड जितनी जल्दी लोहा गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है, एंड देन यू आर आउट ऑफ पर्पस। आपकी लाइफ में पर्पस खत्म हो जाता है। आपको लॉन्ग टर्म गोल लाइफ में क्या करना है पता नहीं है। यू डोंट नो वेर आर यू ट्रैवलिंग, पहुंचना कहाँ है पता नहीं है। सो यू हैव लॉस्ट दैट पार्ट आल्सो, कि भैया जितनी जल्दी वो हुआ था वो भी चला गया। नाउ यू आर विदाउट अ पर्पस, शॉर्ट टर्म पर्पस नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। अब क्या करेंगे? नाउ यू स्लम्प टू डिप्रेशन। क्यों? रियल टाइम फ्रेंड्स भी नहीं है, बिकॉज ऑफ थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म। पहले तो क्या, हम दोस्त जाके मिलके बात करके फलाना करके यू वेंट आउट एंड देन एवरीथिंग इज फाइन। अब वो भी कम हो गया है। जहां हो रहा है वहां इतना रैम्पेंट नहीं है ये प्रॉब्लम डिप्रेशन का या सोशल वैलिडेशन का। ये सब मोस्टली अर्बन टाउन प्रॉब्लम्स है, यस सर। है ना। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज, जैसे आपने बोला, इंडिया में द प्रॉब्लम इज ऑफ द पे पैरिटी। आई वाज देयर इन यूके फॉर गुड 3 months, इन स्कॉटलैंड टू बी स्पेसिफिक। वहां पे जो बंदा, जो लड़का आता था 17-18 साल का, हमारे आई वुड, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली उसका डेजिग्नेशन क्या था, बट वो आके हमारे बर्तन क्लीन करता था। वहां पे जो भी लोग खाना खाते थे 2 टाइम के बर्तन क्लीन करता था। ही वाज टेकिंग केयर ऑफ हिज मदर। ही वाज अर्निंग अराउंड 12 to 13 pounds an hour, which was roughly 24-2500 pounds a month। वो अपने एप्पल वॉच पहन के, एप्पल की क्या बोलते हैं इसको, आईफोन लेकर और फिर एयरपॉड्स लेके आता था, विच इंडिया में इज कंसिडर्ड कि भाई लग्जरी। somebody लग्जरी। having an iPad और an iWatch, एप्पल वॉच या जो भी है। क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो कमा रहे हैं, जो रिच है, वो बहुत ज्यादा रिच है, और जो नहीं कमा रहे हैं या जो नहीं उस एग्जाम को क्लियर कर पा रहे हैं, जस्ट थिंक कि बैंक में 50 सीट की नौकरी निकली, 5,000 लड़कों ने अप्लाई किया, 4,950 उसमें क्लियर नहीं कर पाए। अभी ये बेचारे इस कंट्री में रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करे अपने फैमिली के लिए? फॉर समबडी टू गेट मैरिड, ही टुडे, अगर उसका घर है तो ही एटलीस्ट नीड्स 50,000 रुपीज टू हैव अ डिसेंट लाइफ, एज इन to feed his family, to take his kids, I mean, to make him study him or her study in a good decent school। कहाँ से लाएगा आज का यूथ 50,000 रुपया? वो कॉन्सेप्ट इस कंट्री में कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज उनके पॉपुलेशन और हमारे पॉपुलेशन में, उनकी करेंसी के स्ट्रेंथ में हमारी करेंसी के स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का अंतर है। राइट सर। बट द वेरी फैक्ट दैट इफ यू डोंट मेक दैट कट,
The competition is so stiff, so stiff, so stiff कि भैया अब ये लड़का करे तो करे क्या? पहले फौज में इतने लड़के जाते थे, thanks to the government. I'm not blaming BJP or I'm not saying anything against Mr. Narendra Modi or the defense minister. ये किसी एक आदमी की गलती नहीं है. They came out with the concept of Agniveer. I know how many qualified SF NCOs who served 15-17 years in the SF, जिसके 1000 जंप्स है, कोई कॉम्बैट आई मीन अंडर वाटर कॉम्बैट डाइवर है, कोई कई गैलेंट्री अवार्डी है, एंड आई नो हाउ मच सैलरी डू दे गेट आफ्टर पोस्ट देयर रिटायरमेंट. मुझे पता है इंडिया में लोग कितना पैसा देते हैं, मिलियनियर्स और बिलियनियर्स जो भी उनको एम्प्लॉय करते हैं, कंपनीज हुएवर. जब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, 4 साल का अग्निवीर बाहर निकलेगा 20 लाख रुपए लेके एंड वो कद्दू में तीर मारेगा. Nothing against the Agniveer. I am telling the conditions, existing conditions in the country. Right, sir. So आपने एक और क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन तोड़ दिया. Distress create होगा because Yes. they are well trained and they are now Yes. frustrated because Yes. वो उनको उस लाइफस्टाइल से आप उनको छोड़ रहे हो द प्राइम ऑफ देयर यूथ. Yes. आप उनको उस माहौल में छोड़ रहे हो, क्या करेंगे वो? कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा. मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो ये बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज विल एब्जॉर्ब करेंगे तो उनको बाहर व्हीकल मैनेजमेंट और उस वैसे ड्यूटी देंगे 25,000 रुपए की. तो यूथ की गलती, पूरी गलती उसमें यूथ की भी नहीं है. अब बेचारा करे तो करे क्या, क्या करेगा बेचारा? हर कोई इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, हर किसी का मैथ्स अच्छा नहीं हो सकता. नौकरी तो चाहिए. अब नौकरी नहीं मिल रही है, सस्ता फोन मिल गया ओप्पो वीवो का, सस्ता इंटरनेट है, तो करेगा क्या पूरे दिन वो? सर 150 करोड़ अराउंड 140 करोड़ प्लस पीपल में सिर्फ 2 करोड़ से कम सरकारी नौकरियां हैं, तो कितनों को देंगे हम? और हाँ. उसमें भी देखिए, उसमें भी क्या है, मतलब किसको फैसिलिटीज मिल रही हैं पढ़ने की, कोई गांव से आ रहा है, कोई दूर से आ रहा है, तो आई थिंक दैट थिंग हैज टू बी फैक्टर्ड इन. और अभी मैं जैसे बात कर रहा था, जॉब क्रिएटर्स का एक कॉन्सेप्ट अभी क्रिएट हाँ. करना पड़ेगा. हाँ. और फ्यूडल माइंडसेट से आगे बढ़ना पड़ेगा कि Yes. हमें सिर्फ बाबू बन के ही बैठना है, वो चीज से उठ के कि हमें डिग्निटी ऑफ वर्क को, जैसे हम फॉरेन कंट्रीज Yes. में जाके, वही पंजाब का यूथ है बाहर जाता Yes. है तो वहां जाके कुछ भी काम करता है, यहाँ पे उसे Yes. शर्म महसूस करता है. तो आईएलटीएस को डिग्री समझ के आप यहीं पे अपना इन्वेस्ट कीजिए टाइम. तो ये भी मैं चाहूंगा कि आप यूथ को इस चीज को भी थोड़ा सा ये मैसेज दें कि वो किस तरह से इन चीजों से ऊपर उठें. देखिए, इट वर्क्स बोथ वेज. पहली बात तो जब आदमी अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, अपने आप को स्किलफुल बनाने के लिए, अपने आप को नॉलेज से एम्पावर करने के लिए, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा. आप चाहे इंडिया में आगे बढ़िए, चाहे कनाडा में आगे बढ़िए, चाहे इटली में आगे बढ़िए, यू गो टू श्रीलंका. सी सब क्या बोलते हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. हार नहीं होती. Somebody who is willing to go through the pain of hard work, somebody who is willing to toil, somebody who is willing to take that extra mile, to walk that extra mile, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सक्सेस मिलेगा. एब्सोल्युटली सर. बट सक्सेस को आप पैसे से, सैलरी से एब्सोल्युटली मेजर मत करिए. ट्रू. अगर 21 साल में मैं ये नहीं बना तो आई एम अनसक्सेसफुल, नाउ आई एम गुड फॉर नथिंग, नाउ मेरी जिंदगी खत्म हो गई, नाउ आई गो साउथ वेस्ट. नो, दैट इज नॉट द वे. एंड गुड दैट आज के दिन में एंटरप्रेन्योरशिप है. राइट सर. इंडिया में अगर 150 करोड़ लोग हैं तो भैया 150,000, 1.5 लाख तरीके हैं पैसे कमाने के. कोविड में लोगों ने लड्डू बेच के अमेजोन में पैसे कमाए, ड्राई फ्रूट्स को प्रोसेस एज इन कुछ और बना के लोगों ने पैसे कमाए. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज वेरिन, वही ना. लेकिन आपको रिसोर्सफुल होना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, सीखने की इच्छा रखनी पड़ेगी, मेंटोर्स ढूंढने पड़ेंगे, ओपिनियंस को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, होलिस्टिक व्यू रखना पड़ेगा, आपको फसाड देखना पड़ेगा, आपको पीछे वाला पार्ट देखना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेने की काबिलियत करनी पड़ेगी. There is no end. There is no end. People who are selling golgappas, people who are selling samosas in Mumbai CST trains are lakpatis. There is nothing is stopping you but you. Yes. एक सर वो एक कविता है, वो विलियम अर्नस्ट हेनले की, इनविक्टस, कि yes. out of the night
out of the night that covers me, black as a pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. तो यूथ को वही है कि no night is long enough. गिर जाना आपका अंत है नहीं, हर गिरने के करेक्ट बाद आपने उठना है। तो उस चीज को करेक्ट अगर यूथ समझे, आगे बढ़े, तो आई थिंक एक हम बेटर एक सिविलाइजेशन को क्रिएट कर सकते हैं। और करेक्ट नॉलेज नॉलेज रेवोल्यूशन की तरफ मुझे लगता है यूथ को बढ़ना चाहिए। रील करेक्ट कल्चर कुछ हद तक ठीक है, बट अगर आपका प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगा, तो आज से एक दो जनरेशन बाद जो हमारा जो मेजर पॉपुलेशन होगी, दैट विल बी डिवॉइड ऑफ नॉलेज, दैट देयर विल बी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी। तो मैं इस चीज से काफी थोड़ा सा परेशान भी होता हूँ कभी कभी, व्हेन आई डिस्कस विद माय फ्रेंड्स। तो ये चीज मुझे लगता है यूथ के अंदर इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी को खत्म करने के लिए एक नॉलेज रेवोल्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, आपका इस बारे में आप क्या सोचते हैं? वेस्टर्न वर्ल्ड आज इसी चीज से जूझ रहा है, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी से, बिकॉज दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। उनको हर चीज अश्योर कर दिया गया है, आपको घर मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी वो मिलेगा, आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना सा बेसिक पढ़ाई कर लीजिए, आप ये नौकरी भी करेंगे तो यू कैन रन योर हाउस। सो वो काउंटर प्रोडक्टिव भी है बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट। गिविंग अ मैन द सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन एवरीथिंग दैट ही इज डूइंग और ही शुड बी वर्किंग फॉर is at times counterproductive also. So I completely agree with your fact कि भैया नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। व्हेन आई से नॉलेज, इट इज स्टैटिस्टिकल डेटा जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, इट इज द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मेनी थिंग्स। वो अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि भाई द यूथ विल हैव टू बी स्लोली trained, equipped with the right kind of skills. अभी the kind of companies that are coming to India, semiconductors की company हो, Apple हो, मतलब mobile making, Foxconn, in fact, Foxconn, और the aircraft building companies, be it Airbus in collaboration with Tata, और I think और कंपनियां भी, रोल्स रॉयस की भी है। there are so many big companies. स्पेस साइंस में भी सर काफी वो हो Yes, रहा है, रिसर्च हो रहा है, प्लस yes, एआई का काफी ज्यादा आप देख yes, रहे हैं कि एआई का एवोल्यूशन yes. हो रहा है। तो आई थिंक यूथ को अपने आप को रीस्किल और अपस्किल करने की काफी ज्यादा जरूरत यस है। यस, तो वेरी वेरी आई थिंक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, ये डिग्री ले लिया, इसके बेसिस में मुझे नौकरी मिलेगी, और नौकरी प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी है। यस, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, आई कंप्लीटली अग्री, बट आपका रिसोर्सफुलनेस कहाँ गया? आप किस खदान में सो रहे हैं? अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, what is stopping you, what can stop you today? अगर आपके पास मोबाइल और इंटरनेट है, ऑनलाइन कोर्सेज, डॉक्यूमेंट्रीज, so many stuff available on the internet, what is stopping you? Only you are stopping yourself, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो गए हैं, या आप खुल के देखने के लिए रेडी नहीं है दुनिया को, क्योंकि कंफर्ट जोन के बाहर आपको दूसरों का ओपिनियन सुनना पड़ेगा, कहीं से आपको निराशा को भी फेस करना पड़ेगा। तो वो not many are willing to do that. Second which very important thing which youth should understand is, इस देश में पॉलिटिक्स होता रहेगा। पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। पहले अच्छा था, नहीं था, अभी अच्छा है, नहीं है, आगे अच्छा है कि नहीं है, ये आप और मैं डिसाइड ना करें और रिजल्ट्स को डिसाइड करने दें तो अच्छा होगा। मतलब if India is moving in the right direction in terms of economy, in terms of when I say economy, it is GDP, per capita income, overall health, आपका आपका सिक्योरिटी काउंसिल में आपकी कितनी से है, आपकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है। इट इज नॉट ओनली द स्ट्रेंथ ऑफ द मिलिट्री, द इक्विपमेंट दैट द मिलिट्री हैज। मिलिट्री को किस स्टेज में बैठाया जा रहा है? इफ यू आर द थर्ड लार्जेस्ट आर्मी एंड यू डोंट सिट विथ फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन, कैनेडियन, जो सो कॉल्ड वो है टीयर 1 कंट्रीज है, इट इज नो गुड। सो अगर कंट्री इन डायरेक्शंस पे सही मूव कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, और ओवरऑल क्या बोलते हैं उसको, हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान की सर तरह इम्प्रूवमेंट हो रही है। हाँ, अगर उसमें हो रहा है, पॉवर्टी नीचे जा रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है, अगर ये चीजें सही जा रही है, इसका मतलब आई डोंट केयर हु इज रनिंग द कंट्री और द स्टेट, इसका मतलब कंट्री सही डायरेक्शन में मूव कर रही है। पॉलिटिक्स चलता रहेगा। एज अ यूथ यू शुड नॉट बी सो एनग्रॉस्ड इन पॉलिटिक्स दैट यू लूज साइट ऑफ योर बड़ी करियर, राइट। है ना? सेंटर में कोई भी आए, स्टेट में कोई भी आए, अरे भाई तू तो अपना एग्जाम क्लियर कर,
तू तो अपनी मेरिट वो करके अपना वो ज्वाइन कर, उसके बाद अपना ओपिनियन देना कि एज अ वोटर ऑफ दिस कंट्री, यस आई फॉर्मली बिलीव दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. एंड इंडिया में होना चाहिए. डेमोक्रेसी इज अ प्लेस वेर यू शुड बी फ्री टू गिव योर ओपिनियंस Absolutely, without sir. I'll say insulting the country, है ना. भारत देश को बिना इंसल्ट I किए. think criticism, sir, criticism of the government should not be taken as criticism of the country because all of Absolutely. because in universities all एक thought है, Descartes एक philosopher है, rationalist philosopher. उन्होंने एक method of doubt दिया था कि cogito ergo sum का कि I think therefore I am. So societies that don't think that they don't critique of policies, to critique of policies, they don't evolve. तो Yes. मुझे लगता है ये यूथ को एक पैट्रियटिज्म और जिंगोइज्म के बीच में एक बैलेंस बनाना Yes. काफी एक जरूरी है बिकॉज Yes. वो लॉन्ग टर्म में देश के लिए शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है. व्हाट डू यू थिंक? होगा, होगा, हो नहीं सकता, होगा, क्योंकि ना कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होती. डू आई लाइक द प्रेजेंट गवर्नमेंट? एब्सोल्युटली. इतनी सारी अच्छी चीजें हो रही है इस गवर्नमेंट में जो मैंने देखी है मेरे ऑपरेशनल एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट में. सो मच हैज चेंज, सो मच. बट इज द गवर्नमेंट परफेक्ट? नो. नो Am I गवर्नमेंट इज against? Yes. Am I against Agniveer? Yes, absolutely. Am I against five other things which the government has said? Maybe. But do I like the present government, the way India is moving in whichever direction? Absolutely. I am very proud of what the Prime Minister is doing and what he has achieved in the global Absolutely. forums. तो आज इंडिया जाता है तो I see रशियन प्रेसिडेंट चल के आता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट चल के आता है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर चल के आती है उनसे मिलने के लिए. आई फील वेरी प्राउड जब मेरा प्राइम मिनिस्टर अपने आप को वैसे वो करता है, ऑर्केस्ट्रेट करता है. सेम थिंग. बट अंधा हो जाना कि भैया दैट इज रॉन्ग. वी आर परफेक्ट, वी नो इट ऑल, वी वर द मोस्ट एंशिएंट कल्चर, सो वी आर द बेस्ट. बाबा देयर इज नो बेस्ट वाला थिंग, कोई बेस्ट नहीं है. अमेरिकन जो अपने आप को बेस्ट बोलते हैं, वी आर द बेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, धूल चटा दी थी वियतनामीज ने विद एब्सोल्युटली नो गियर, नो रिसोर्सेज जिसने. एट ऑल. हाँ. तो ये बेस्ट का कॉन्सेप्ट भूल जाओ कि भैया ही इज द बेस्ट, दैट इज द बेस्ट. दैट इस कॉन्सेप्ट, इस इल्यूजन में मत Sir, रहो. if we keep looking backwards only, we cannot go forward. I think we Absolutely. should celebrate the rich heritage and culture that we have, Yes. but same time पे आगे बढ़ने के लिए एक progressive mindset, एक way look into the future, that is also important. I think Yes. that is what you also said. Absolutely. You learn lessons from your past, from your history, कि क्या गलत हुआ उसको रिपीट नहीं होने देना है, उसको रिपीट नहीं करना है. At the same time, you should have enough slot to be accommodative in terms of whatever modern is coming to accept. And more or less, I mean no offense to any religion. सारे religion में fanatics हैं, सारे religion में fundamentalists हैं. Absolutely. More or less, I can tell जो हिंदू religion है, it is accommodative. मतलब वो Yes, स्टक अप absolutely. नहीं है कि हम ऐसा ही करेंगे, तू इसी भगवान को पूजा करेगा या कीर्तन इसी तरीके से होगा. सो दैट वे इन इंडिया वी आर ब्लेस्ड. मेजोरिटी आर हिंदूज. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो माइनॉरिटीज हैं दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, ऐसा वैसा. मैं सिर्फ अपने कम्युनिटी के लिए बोल रहा हूँ. बिल्कुल. सो दैट वेज इट इज इजियर फॉर अस टू बी अकोमोडेटिव, व्हिच वी आर. एंड आई थिंक वो हमारा प्लस पॉइंट है, फोटे है कि कल्चरली वी आर वेरी स्ट्रांग. हमारा वी हैव अ वेरी. सिंक्रेटिक जो कल्चर है, गंगा Yes. यमुनी तहजीब है, वो दैट कम्स टुगेदर, कोहैबिटेशन ऑफ कल्चर्स एंड एसिमिलेशन का ऑफ कल्चर, तो वो हमारी स्ट्रेंथ भी रही है सर. Yes. Right. Sir, now when you were in the army and how did you decide to move to the special forces? I mean, was there any prompt to it or was it gradual transition to special forces? नहीं, मतलब मैं आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स व्हाटएवर इज बेस्ट इन द वर्ल्ड. दुनिया में जो Right. सबसे अच्छा है मुझे वहां पहुंचना है. मेरा हमेशा से Absolutely. पर्सपेक्टिव ऐसा रहा है लाइफ को लेकर कि ये सबसे अच्छा है तो ये होना चाहिए. वेदर यू रीच और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग. So NDA, I had my instructor that time, Major Ashish Hooda, who subsequently was my commanding officer, my second commanding officer in my unit. उनको देख के लगा कि भैया बनना है तो यही बनना है और इसी रेजिमेंट में जाना है. बिकॉज आई न्यू आई वाज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट. मतलब आई डिडंट हैव टू गो फ्रॉम वन स्टैंडर्ड टू अदर. मतलब मुझे कोई ऑर्बिट जंप नहीं करना था कि मुझे मैं
था, उस लीग में था। यू नो योरसेल्फ नो कि फिजिकली मैं उतना अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, क्या मेरे में उतनी रेजिलियंस है कि नहीं है, कैन आई एंड्योर दैट मच ऑफ हार्डशिप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड देयर आफ्टर, क्या मैं आई एम रेडी फॉर दैट। तो यू नो योरसेल्फ। हम लोग जनरली बोलते हैं कि नहीं सर मैं कंफ्यूज हूँ, मैं ऐसा हूँ, इट इज ऑल शैम मेरे हिसाब से। हर आदमी अपने आप को जानता है। यू स्पेंड 3 nights टॉकिंग टू योरसेल्फ, अकेले कमरा बंद करके, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। एकदम सर, एकदम। हाँ, तो क्योंकि दीज डिसीजंस आर टू डू विथ योरसेल्फ। हाँ, जब फैमिली हो जाती है उसमें और फैक्टर्स आ जाते हैं, इट्स अ सेपरेट थिंग। बट एनीथिंग टू डू विथ योरसेल्फ, आप अपने आप को जानते हो, यू ओनली हैव टू स्पेंड एनफ टाइम विथ योरसेल्फ। तो मैं क्लियर हो गया कि भाई यही ज्वाइन करना है। एंड इंडिया में मुझे लगा कि भाई स्पेशल फोर्सेस है, एलीट लॉट है, सिलेक्शन है टफ, इट्स रिगरस। उसके बाद दी कोर्सेज डिमांड यू नो मच हायर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज बोल लो, फिजिकल टफनेस बोल लो, मेंटल रेजिलियंस बोल लो। एंड बस फिर मैंने मन बना लिया कि भाई यही ज्वाइन करना है स्पेशल फोर्सेस। सर, आर्मी में आईएमए पास आउट होने के बाद फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ रही आपकी? वेयर वर यू पोस्टेड? आई वेंट टू बैंगलोर ओके, ओके, फॉर द प्रोबेशन एंड टू पैरा। ओके, ओके, ओके। वहां पे आई डिड माई 20 किलोमीटर, मतलब मैंने 42 दिन का प्रोबेशन कर लिया था। बट हम्म। माई राइट नी वॉज नॉट हेल्पिंग मी, मतलब मेरा राइट नी वॉज इन अ बैड स्टेट। ओके। एंड आई डेंट वांट टू गो एनी फर्दर विद दैट इंजरी, बिकॉज somehow I was not convinced to go ahead with the injury, because सिलेक्शन के बाद मुझे कहीं टेबल चेयर डाल के नहीं बैठना था। सिलेक्शन के बाद भी वही 1.5 घंटे की एसएफपीटी, इधर भाग उधर भाग, ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग, सीआई डिप्लॉयमेंट, सो देयर इज नो रेस्ट देयर आफ्टर। सो वो एग्रेवेट होता चला जाता। So I took a conscious call. I will not continue with the probation. I came back to infantry in Gandhinagar. ओके। Seven Maratha. I was in 7 Maratha in Gandhinagar, and then I again volunteered for the SF. And next year, 2011, mein I got So what my. is the criteria for the getting into the SF? Any specific, fitness, or what are the skills and what are the criteria for getting into the SF? If that SF के can लिए, be classified. हाँ, एस नहीं, इसमें इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। एसएफ के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि भैया यू नीड, क्या बोलते हैं, आई विल नॉट यूज एनी स्लैंग्स हियर, है ना। आपका बेसिकली X factor, X factor. नहीं, आपका मेंटल फोर्टिट्यूड अल्ट्रा क्या प्रो मैक्स लेवल चाहिए। इट डज नॉट मैटर व्हाट इज योर हाइट, आपका फिजिकल। सी, व्हेन यू आर गोइंग इन फॉर द प्रोबेशन, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू बी जॉन रैम्बो। दे एक्सपेक्ट यू इन इन्फेंट्री स्टैंडर्ड्स की इतने मिनट में पीपीटी Mm-hmm. दौड़ लेगा, इतने मिनट में पीपीटी दौड़ लेगा। बट जो उसका जो मेंटल फोर्टिट्यूड है ना, कि कम वॉट में आई विल नॉट गिव अप, मतलब मुझे रात भर ना सोने मिले, मुझे लिमिटेड खाना दिया जाए, मुझे अकेले नेविगेशन पे भेज दिया जाए, मुझे बार बार जलील किया जाए, मुझे दूसरों के कंपेरेटिव वो दिया जाए ट्रीटमेंट की, दूसरे रेस्ट कर रहे हैं बट मैं गार्ड ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी कर लिया जाए, आई विल नॉट गिव अप। सो दैट इज, मेंटल टफनेस, वो मेंटल टफनेस हाँ आपकी। हाँ, मेंटल टफनेस। बट ये कहने वाली बात होती है कि यार फिजिकल अपने आप ऐसा नहीं होता। यू कैन नॉट बी 108 kg फैटसो एंड सडनली कि भाई मैं तो करके दिखाऊंगा। हो सकता है तुम कर जाओ, बट दी चांसेस आर ब्लीक। क्योंकि भैया इफ यू आर टू जॉइन स्पेशल फोर्सेस, आपने पूरे 3 साल एनडीए में क्या किया, 1 साल आईएमए में क्या किया, कद्दू छिला। क्यों नहीं दौड़े आप एक्स्ट्रा, क्यों नहीं आपने स्ट्रेंथन किया अपने नीज को, बैक को, आपके कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को क्यों ज्यादा आपने नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं आपने 20 पुलअप्स मारने की प्रैक्टिस किए, व्हाई डिड यू नॉट प्रैक्टिस बड़ी गिविंग 100 प्लैंक टाइप पुशअप्स, व्हाट वाज स्टॉपिंग यू। सो ये दिस इज अ फैलेसी कि मैं तो भैया मेंटली स्ट्रेंथ वो हूं तो ओवरनाइट कुछ कर जाऊंगा, नहीं कर पाओगे। कंडीशनिंग दैट इज बहुत नॉट जरूरी है। सस्टेनेबल। वो सस्टेनेबल यस, वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है, बट सस्टेन नहीं हो यस, पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। यू माइट हैव वन ऑड एक्सेप्शन जिसने ऐसा कर दिया या उससे हो गया या whatever, but that should not be the norm. If you want something in life, you have adequate time to plan. Please take some time out, prepare for that, put in extra effort. Be slow, be steady, be continuous.
So what is the, cutting edge? If you can demystify what do special forces do, and what is the cutting edge of special forces? What is that USP, if I were to say, I in a think very, Jacob sir, very normal parlance, which I mean, novice sir can understand. आई थिंक जेकब सर ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया था, ऐसा ही कोई सवाल पूछा गया था, जेकब सर गिव अ फैंटास्टिक रिप्लाई, मेजर जेकब, कि यू डोंट गिव अस एनीथिंग and give us an extremely difficult task and we'll still do it. It is being resourceful, it is being flexible, it is being adaptable, it is the capability of not sticking to a given stereotype way of doing things. I think that is the USP. Matlab, you can give us a difficult task and believe that that will be achieved, that will be done, that will be finished by whatever time, and we'll do it. Yes, we might buy casualties. Yes, there'll be loss of life and resources, and there'll be collateral. But काम हो जाएगा. I think that is the USP, and that is So is across there, the world. is there something special with the special forces? Because I was listening to Jacob sir also, and there is this monk mentality. I think this calm about special forces people. I was listening to Jacob sir also, and I am feeling the similar vibration now as well. It's kind of no false bravado, no false braggadocio. It's all calm and poised and soaking it all in. I can, feel that energy transpiring here as well. So what is, can you tell us? I mean, ऐसा क्या खिलाते हो स्पेशल फोर्सेस वालों को जो मंक बन जाते हो? नहीं, I think it is the other way around. I think ऐसे लोग जो इस फ्रीक्वेंसी पे डांस करते हैं वही लोग स्पेशल फोर्सेस में सिलेक्ट हो पाते हैं. I think it is like this. Absolutely. स्पेशल Yeah. फोर्सेस में आने के बाद हम कुछ नहीं खिलाते, हम उसको कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाते किसी को. इट्स अ Mhm. आई थिंक इट इज द माइंडसेट दैट कीप्स यू टिकिंग, दैट कीप्स यू गोइंग. ऑल्सो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, a few rotten apples can be found everywhere, that's a separate story, but Absolutely. Absolutely. 9 out of 10 in special forces, मुझे ना किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए यार, मुझे चेस्ट थम्पिंग नहीं यही करना. यही सबसे सर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मतलब आई वाज टच्ड दैट इज समथिंग दैट वाज टच्ड बिकॉज owning yourself unapologetically हम्म. and no need to prove yourself to anyone, that is something है ना. शेर को दौड़ना है अगर कुत्तों की रेस में, तो वो फिर शेर की वहीं पे वैल्यू खत्म हो गई ना. हाँ, एब्सोल्युटली. इफ आई एम चेस्ट थम्पिंग, इफ आई एम टेलिंग यू कि मैंने भाई, because you are from IB, you would understand what I'm trying to tell. If I have been to that part of the country, I was doing that when I was in Delhi with that organization. भैया मुझे नहीं बताना यार, मुझे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी वैलिडेशन, मुझे नहीं चाहिए 50,000 फॉलो. हाँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर एक दिन मेरे इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर हो जाएंगे, तो भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा. बट विल आई स्पिल आउट एवरीथिंग दैट आई हैव डन जस्ट टू ब्लडी टेल पीपल हाउ बिग अ फाइटर आई वाज? या मुझे क्या उनकी वैलिडेशन या उनके बोलने से क्या वो तारीफ करते हैं तो मुझे खुशी होती है? यस. बट कल को अगर मेरा अकाउंट सीज हो जाता है, विल आई गो इन डिप्रेशन? विल आई केयर? आई वुड गिव टू मतलब I get it, sir. I get the feeling. I get the feeling, sir. तो है बहुत अच्छा है, बढ़िया है. नहीं है यार, तो मुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए. एसएफ मेंटालिटी मतलब आइडियली मोस्टली ऐसा ही होता है कि है तो बहुत बढ़िया. And we have a lot of time, while because we are mostly deployed in the field areas. You are sitting in an ambush for 5 days, 7 days. आप LRP पे निकले हो 12 दिन 14 दिन, सेल्फ सस्टेन्ड, घंटों आप पहाड़ियां चढ़ रहे हो. हम तो भैया मॉडर्न उसकी तरह कान में एयरपोर्ट्स लगा के पहाड़ी नहीं चढ़ सकते ना, ऑब्वियसली. आई मीन इट्स लाइफ एंड डेथ. सो व्हाट डू यू डू? हु डू यू टॉक टू? योरसेल्फ. That is what. आप यस सुबह Whenever you cannot go outside, go inside. यस That's what. यस That is what is सुबह required. 6-7 बजे आपने पहाड़ी चढ़ना स्टार्ट किया, या रात को आपने 8-9 बजे चढ़ना स्टार्ट किया, सुबह 4 बजे तक चढ़ रहे हो. what is going on? You are constantly thinking, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है क्या? मतलब मैं तो कहूंगा कि एम्बुश में 5 दिन बैठे हुए हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो. यस. बट आई कैनॉट इमेजिन दैट अ मैन सिटिंग देयर इन एम्बुश फॉर 5 days इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ. मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाई एम आई डूइंग दिस, पत्ता ग्रीन क्यों है, रोड ब्राउन क्यों. Every goddamn thing that is in and around you will start pinging you. ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों. So once you start looking inwards,
आपको फिर दुनिया से किसी से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। कोई बोलता है कि भाई somebody knows better टेक्निक, मैं इसीलिए कभी अपने मीडिया उस पे मैं किसी को नहीं बोलता कि ऐसे बनाओ बॉडी बन जाएगी, ऐसे बनाओ फिट हो जाओगे, ऐसे। मैं बोला अपनी अपनी जर्नी है भैया, फाइंड अ गुड मेंटोर जिसका सर्टिफिकेशन है, यू टेक गाइडेंस, बट डोंट फॉलो द फेक मेंटोर्स, यूट्यूब वाले जो आपको वो बना रहे हैं पैसे के लिए। एंड इट्स योर जर्नी, गो इन दैट जर्नी, मेक मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम, उसी में तो मजा है। मैं आपको हेलीकॉप्टर से उठा के यहाँ से अगर वहां रख दूं, फिर तो आपने मजा ही खो दिया उस पूरे जर्नी का। सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई आई डोंट डू दिस, कि मैं आपको ये सिखा देता हूँ, मैं आपको वो बता देता हूँ, नहीं। थोड़ा बहुत तो मैं जानता पंजाबी हूँ। में कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्नू स्वर्ग लेना है मरना भी उन्हें पैना है। सो इफ यू हाँ वांट द हेवन यू हैव टू गो। you have to you have to सो go through the एक yes, किताब पढ़ रहा था, उसमें देयर वाज दिस बुक बाय युवल नोआ हरारी, सेपियंस, जिसने okay, लिखी है yes, 21 लेसन्स फॉर 21st 21 lessons सेंचुरी। तो 21st century, या तो उसमें स्टार्टिंग स्टेटमेंट ही है कि इन दिस वर्ल्ड डिल्यूट्स बाय इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी इज पावर। और yes, क्लैरिटी कब आएगी? जब आप खुद के साथ कनेक्ट हो जाओगे, है yes, ना? यू गो इनवर्ड्स। क्लैरिटी आई yes, थिंक यूथ के लिए स्पेशल फोर्सेस से अगर एक लेसन है लेना चाहिए, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप स्पेशल फोर्सेस का जैज तो जरूर देखें, बट उनका जो एक जो इम्बाइब कर लिया उन्होंने अपनी वननेस को, बीइंग वन विद देमसेल्व्स, कहते हैं ना yes, अहम ब्रह्मास्मि, अहम yes, ब्रह्मास्मि, वन हु नोज द ब्रह्म बिकम्स द ब्रह्म। सो यू yes, बिकम योरसेल्फ, दैट इज आई yes, थिंक मोर इम्पोर्टेंट। yes, Sir, I was also listening to Jacob sir's podcast and he said that एक बार वो ambush में थे और वहां पे there was this leopard, I think, just close to him, and they were both at peace with each other. So, I mean, do you have any such experiences? I mean, what goes on in the mind? Because डर तो सर सबको लगता है. So, how do you process that thought and that feeling of fear, maybe, or how do you go about it? Jacob sir was sitting with a predator, so maybe he was in a more difficult, dangerous, precarious, जो भी आप setup बोल लो, but somehow the predator also knows कि भैया for so many years I've been seeing these people, human beings with सब कुछ लटका के चल रहे हैं जंगलों में, and they are not hunters, they are not killing us animals, है ना? और एनिमल Right, बुद्धू right. नहीं होता, एनिमल जो होता है ना वो बुद्धू नहीं Right, होता। right. तो जैसे मैंने वो एक स्टोरी बताया था हाथी का, है ना, अब मेल, सिंगल मेल बुल, बाप रे व्हाट वाज दिस, आई मीन, एंड 2:30 बजे मेरा बडी उठा के बोलता है कि साहब हाथी है, एंड मैं तो मूनलेस नाइट था, कम था मून, वेयरिंग फेज में था। मैं बोला कहाँ, मतलब ऐसे कहाँ? तो बोलता है कि यही है। सो आई टुक हिज नाइट शेड एंड पुट द monocular नाइट शेड एंड आई सी अ मैजेस्टिक ह्यूज elephant, though there was a big tree in between us, but if it wanted to kill it, it would kill। मतलब क्या मेरे को डर नहीं लगा? ऑब्वियसली मुझे डर लगा। इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मी, बट देन आई हैड माय कंप्लीट टीम, सो देयर सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये वो 10 थिंग्स, Responsibility. है ना? बट एट द सेम टाइम यू आल्सो नो कि भाई द एनिमल, जैसे सांप आपको कभी डसने के लिए नहीं आता घर से, अपने बिल से आपको डसने के लिए नहीं निकलता सांप, कि मैं आज जाता हूँ 2 इंसानों को डस देता हूँ। बीच में आपका पैर पड़ जाता है बेचारा, वो थ्रेटेंड फील करता है, तो इट अटैक्स यू। सो एनिमल्स, दे आर लुकिंग एट यू, यू आर लुकिंग एट देम, वो अपने आप पीछे मुड़ेगा और चला जाएगा। वो चला गया मेल एलिफेंट। सो दे आल्सो अंडरस्टैंड योर फ्रीक्वेंसी। So, जब भी आप सर एम्बुश में या कभी operations में when you used to go, so what were the challenges that you would face? For example, not eating for days, यस, maybe not being in a hospitable place. For example, यस, not being able to change your clothes, maybe यस, rains, marshes, wet socks, यस, wet shoes, यस, everything. So, यस। although we are all humans, we are all special forces people, but then we are humans. So then, how do you overcome that mental battle there? Because does that impact your operational efficiency? And two, how you kind of motivate your team also at the same time, because that becomes very important to keep the morale high. So how do you keep the morale high as well in those times? सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट में द बिगेस्ट एनिमी इज द नेचर। Right. subtropical subtropical jungles, you have rains, you got mosquitoes, you got leeches. uh, it takes some time to understand
what are the jugards that you can, inculcate or integrate into your preparation that can keep you safe? Are you to carry a tarp? If you have to carry a tarp, how do you camouflage it between the plants so that somebody outside cannot see you, so that you are, dry? And if you are wet, do you have a dry set of clothes जिसको आप चेंज करके रात को सोना चाहोगे अगेन अंडर द टार? कौन सा देसी लेमन ग्रास है विच कैन कीप यू सेफ? कैन यू वेयर समथिंग विच हैज नेट, मॉस्किटो नेट इनबिल्ट है आपकी कैप में? कैन दैट हेल्प यू? So I'll tell you, so out of my experience, the vagaries of nature take away a lot of operational efficiency, a lot of operational efficiency. एक human being का efficiency can be lost to an extent of 70% if you can't fight the inclement weather. Uh, at the same time, what is more important is equipping yourself with the right gear. And I am very I'll say brutal in telling कि भाई हमारे country में वो outlook नहीं है. We boast that as a country in India we have deserts, we have mountains, we have jungles, we have such a big sea line, coastline. We have amphibious responsibilities as well in the army. But have we evolved in a manner जहाँ पे हमने जंगल ट्रूप्स के लिए अलग यूनिफॉर्म बनाया है, अलग रिक्वायरमेंट्स समझा है, डेजर्ट के लिए अलग समझा है, डेजर्ट कैमोफ्लेज प्रिंट अलग है, जंगल कैमोफ्लेज प्रिंट अलग है, माउंटेन का कैमोफ्लेज अलग है? दैट रिफाइंडनेस हैज नॉट कम इनटू द आर्मी. सो वो प्रॉब्लम तो था. And when you say about staying motivated, if you put up a smiling face in India, your men are confident कि साहब है, साहब ठीक है तो यार हम भी ठीक है, in India at least. But believe you me, that is not going to work forever. ये if we don't evolve, we'll be obsolete. So unless we acknowledge this problem of equipment, specialized equipment for the specialized terrain to fight the inclement weather or to mitigate the problems thrown at the combatants by the weather, uh, will suffer. Right. Even sir, when I was posted, many of my friends were on the Myanmar border or something, so they had to survive on roots and boiled rice. That's all. Was there any experience of yours where you had to kind of, could you share if there is anything? We had couple of experiences because जिन posts पे मैं रहता था, they were mostly cut off in the monsoon. And in northeast, you also served in the northeast. The monsoon are what, 7-8 months long. 6-7-8 महीना monsoon चलता है. Every afternoon there are rains. हाँ, मणिपुर में तो मुझे आई रिमेम्बर 12-13 दिन बारिश होता था. 13 days of continuous बड़ी बारिश. जिस तरफ मैं ऑपरेट कर रहा था मणिपुर में, एंड रोड बह जाती थी, कोई क्वालिटी नहीं होता था रोड का. रोड होता ही नहीं था. रोड जब मैं व्हेन आई से रोड, इट इज मिट्टी का रोड. बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुआ, पूरा का पूरा रोड बह गया. फ्रेश राशन है नहीं, जो आपके ट्रेंड राशन है उसको खाइए. वो भी आप कितने दिन खाएंगे, कितने दिन सरवाइव करेंगे? और वो टिंड राशन वैसे ही नहीं उस क्वालिटी का होता है, उस पैलेट का होता है, पैलेटेबल नहीं होता. Not all of them are palatable. Obviously, that's a challenge. So then obviously you fall back to the villages for them to go and hunt and get something for you. And so the summary is there is a lot that can be done. There is a lot that has improved while I was operating, and today when I talk to my boys, a lot has improved. But this is only the beginning of improvement. That is how I see, and I feel there is a lot that can be done. बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि an army marches on its stomach. एडमिनिस्ट्रेशन फिट होगा तो आप बिना सोचे समझे पूरी आपका जो पूरा फोकस है, इट कैन बी एन ऑपरेशन. इफ यू आर इफ यू आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली फिट, आपका जहां रह रहे हो वहां लीकेज हो रहा है, यू डोंट हैव एनफ पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग के लिए, you don't have access to the basic network to speak back to your family when you come back from operations. अगर आप बेसिक राशन की जद्दोजहद कर रहे हैं, कैसे होगा, कैसे? you see the lessons learned ना. आप वियतनाम देख लीजिए, जापानीज
जब आ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनकी हालत देख लीजिए, बर्मा में क्या हुआ बिफोर दे रीच्ड इंडिया। मानसून में उन्होंने जो आया, जो when they came and they when they tried to cross this Chandran, and उस पूरे उसमें देखिए उनके साथ क्या हुआ कंडीशन। सो Right, right. आई फर्मली बिलीव कि भैया डज नॉट मैटर व्हाट, मतलब आप स्पेशल फोर्स है नहीं है, आप नॉर्मल मिलिट्री है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिवली यू शुड बी लुक्ड आफ्टर। Absolutely. So it is not just the fancy Kalashnikovs or fancy gear. We need to have good logistics in place. एब्सोल्युटली। I think that's absolutely right. You rightly pointed out, sir. And Sir Paul Hoffman ने concept दिया hybrid warfare का. You know, the times to come, the future of warfare is going to change now. More than the trench warfare that used to happen during World War II, and now recently we will have these guerrilla tactics and all these things. How do you see the future of warfare evolving, and how we as an army, as a our overall security establishment, intelligence included in that, how do you see that needs to evolve? Because 26/11 happened, Pulwama happened, we established multi-agency center and other. We try to bring things into from silos to into a little collaborative approach. How do you see us moving forward as a uh, collaborative security setup to preempt enemy what do you say enemy mischievous activities and thwarting their nefarious plans? मेरा तो ये मानना है कि जब से वॉरफेयर चल रहा है, डॉक्यूमेंटेड वॉरफेयर, इट हैज ऑलवेज बीन हाइब्रिड। हम अगर रामायण और महाभारत को छोड़ दें, जब सुबह शंख बजता था लड़ाई होती थी, फिर शाम को शंख बजता था लड़ाई बंद हो जाती थी, आप कोई भी लड़ाई उठा के देख लीजिए, पुराना कोई भी लड़ाई उठा के देख लीजिए, इट हैज ऑलवेज बीन हाइब्रिड। अगर मैं एक फोकलोर से एक एग्जांपल दूं तो आपने चंद्रकांता तो देखी होगी व्हेन यू वर ग्रोइंग अप ऑन टीवी। Absolutely, every Sunday morning that was the ritual. तो चंद्रकांता में क्या नहीं था? What was missing in Chandrakanta? It had everything. Chandrakanta was full of spies. चंद्रकांता में काउंटर, आई नॉट से क्लासिकल काउंटर इंसर्जेंसी, बट एम्बुशेस होते थे एनिमीज पे। चंद्रकांता में लड़ाइयाँ होती थी दोनों आर्मीज की। आई थिंक फोर्ट को सीज करने वाला वो भी करते थे कि विल सीज दी फोर्ट, बाहर वो करेंगे, उनको इन आउट नहीं होने देंगे। सो मेरे हिसाब से तो लड़ाई भैया, इट हैज ऑलवेज बीन हाइब्रिड। When we say trench warfare, it is just that one aspect of it was trench warfare. You see the number of spies that were involved in Second World War. आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, क्या बोलते हैं, ईसीएम, ईसीसीएम सब हो रहा था, बट दे नॉट ट्राइंग टू डिसाइफर द मैसेजेस जो ट्रांसमिट हो रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑनेस्टली बताऊं तो उसने पूरा स्पेक्ट्रम खोल दिया था, एयर वॉरफेयर से लेकर टैंक वॉरफेयर से लेकर मतलब यू नेम अ थिंग, सबमरीन, यू बोट जो बोलते हैं, इट हैड एवरीथिंग। तो हाइब्रिड वॉरफेयर विल एंटेल एवरीथिंग। आपके पैम्पलेट्स फेंकने से लेकर, सोशल मीडिया के रील्स से आपको इन्फ्लुएंस करने से लेकर, स्ट्रावा ऐप से आपके लोकेशन से ट्रैक करने से लेकर, क्या है वो ऐप, discrediting policies and influencing election, a lot more. यस, टिकटॉक में आपके उससे लेकर, क्या बीच में क्या आया था, ब्लू व्हेल चैलेंज व्हाटएवर से किड्स, everywhere you are being followed, everywhere you are being tracked, everywhere organizations are keeping an eye open कि भाई आप क्या कर रहे हो। जिस दिन वो टाइम आएगा, वो आपके अगेंस्ट वो चीजें यूज करेंगे। जो गलिबल होगा, जो वल्नरेबल होगा, जो जिसने कभी ये होलिस्टिक तरीके से नहीं देखा होगा, he will fall prey to the organization, जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। Absolutely. And the hybrid warfare is happening every day, every moment, every second. It is only a matter of time कि किस टाइम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वॉर डिक्लेयर करेगा। Right, sir. So if I turn back to the times of Second World War, spies की थोड़ी सी एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक रिचर्ड सॉर करके एक डबल एजेंट थे, who worked for KGB, he worked for the British, Germans, and a lot of other people. So he was the one who told the Stalin that Hitler is going to attack in June. So how much importance, and we all know about Eli Cohen,
what he did with the Israeli for the Israelis. Israeli in Syria में जाके उन्होंने how he rose on to become so there is a lot that goes behind the curtains as well, and Yes. I think we all need to security establishment में ये सब कुछ एक together इसको लेके चलने से we can create a better architecture, security architecture. अब cyber space में आप देख रहे हैं किस तरह से इवन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को स्टक्सनेट्स का अटैक ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे हुआ था, फिर बॉम्बे में आपका जो पावर ग्रिड को हैक कर लिया गया, तो आई थिंक हमें इस तरफ भी थोड़ा सा मूव करने की जरूरत है. व्हाट डू यू थिंक सर? Absolutely, you need subject matter experts. You need subject matter experts as operators. You need subject matter experts as managers. You need subject matter experts as the senior most secretaries who will then report to the prime minister or the Raksha Mantri. Right. I also feel we can always devise something on the lines of Delta Force, US के context में अगर मैं कहूँ, right. directly information feed किया जाता है उनको CIA से. So the reporting is at highest level, बिल्कुल when I say highest level, Pentagon के highest level पे reporting होती है उनकी. PMO level पे Yes, इंडिया में अगर बात yes, करें तो yes, tasking वहीं decide होती है. You go finish the task, come back, and most of the times पता नहीं होता कौन गया, किसने किया, कैसे किया. उस लेवल का स्पेशलाइज्ड फोर्स हमें चाहिए. और प्रॉब्लम क्या है इंडिया में जो मैंने रियलाइज किया है, यहाँ पे प्रॉब्लम है क्रेडिट लेने की. नॉट दैट फॉरेन में ये प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी है, बट यहाँ पे ज्यादा है. इट इज अबाउट कि कौन क्रेडिट लेगा, किसको इंक्रीमेंट मिलेगा, किसको मेडल मिलेगा. Once you volunteer for these organizations, one should never be given a medal until he retires. मतलब कि वो दुनिया को बता सके. अगर आपको मिला भी है, it will never be told, never be announced until the day you retire. जहां ये ग्लोरी गेम खत्म कर देंगे आप, आपको जेन्युइन बंदे मिलेंगे who actually want to do this. And at the same time, the country, the government, I'll say the country because government तो change होते रहेंगे, parties change होती रहेंगी, should have solid policies in place to take care of these operators and their families. They should be priority one. वो चाहे इंटेलिजेंस ऑपरेटर हो, वो चाहे साइबर स्पेस में कर रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में कर रहा हो, चाहे वो खुद क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड ऑपरेटर है, चाहे विद वेपन है, चाहे विदाउट वेपन है, चाहे वो रिकॉग्निशंस वाला आदमी है, चाहे वो व्हाटएवर, whoever is in that organization should be treated as priority one. Pay, perks, allowances, social security, you name a thing, and they should be prioritized as P1. You need to bring the best people in the Yes. forces. That's what, Yes. and I think secure them for you, and they will secure you. That is what is Yes. required. वो तो willing है काम करने के लिए, but when you want that काम to be more than what is written in the books, more than what is probably I'll say envisaged कि ये काम के बिना beyond तो हमने सोचा ही नहीं. अरे भाई किया जा सकता है. Anything that human mind can think, imagine can be achieved. Conceive, But it वो can ऐसे नहीं achieve. होगा. Yes, but वो ऐसे नहीं होगा. सर अभी जैसे हमने इन ऑपरेशंस की बात की, जब हमने एसएफ फोर्सेस की अगर ऑपरेशंस की बात करें, व्हेन यू हैव टू डू क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस मे बी इन एनिमी टेरिटरी, whatever, we don't want to go too much into it, but just subtle challenges. For example, when we launch an operation, launching an operation is one thing, and then retrieving and coming back, maybe you are in 15, 20, 30, 40 kilometer into enemy territory, you have to come. Air support will be minimal because that there also will be other challenges from because they have their establishment. So what are the practical on ground challenges? Because what they show in the movies, I think that is far from reality. So could you just share with us what are the practical ground problems that are faced by special forces people? What they show in movies BS. अमेरिका कर सकता है वो. नहीं यूएस कर सकता है. यूएस कर सकता है. यूएस let's say send Delta Force या Green Berets या SEAL Team 6 या जो भी है, depending on the tasking. US can drop the people in a hayo, 30 kilometers दूर drop कर दिया. Enemy का air defense शायद होगा भी नहीं, और होगा भी तो शायद उसके रडार उतनी दूर से सिग्नेचर पकड़ पाएंगे. I am doubtful of that aircraft. The paratroopers come in, the special forces guys come in, land, do the tasking, move away from that place for maybe 3, 4, 5 kilometers. Their helicopters come in,
pick them up from the exfil zone and go away. Because यूएस की जो एयर सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश करने की जो कैपेबिलिटी है, इट इज अनपैरेलल्ड. But Indian context में can the Indian aircraft bring you back? It is impossible because air superiority होगा नहीं हमारे adversary के साथ जब हम काम कर रहे होंगे. हमारे aircraft continuously engaged होंगे वो विंडोज खोजने के लिए कि किस विंडो में कहाँ हमें एयर सुपीरियरिटी मिल जाए और हमारा कोई और काम, कोर का कोई और बड़ा लेवल का काम हो जाए. तो एसएफ को डेडिकेट करने के लिए एयर एसेट्स नहीं है हमारे पास. So exfil is by foot. And when exfil is by foot, it is to be understood कि भाई it is a tedious process and there are good chances that you lose life. And it is fact है. मतलब जब हम जाते हैं या हम कोई हमारी ब्रीफिंग होती है, we would have accepted कि भैया होंगे casualties, we are not coming back because इन साइलो तो आप जान ही रहे, लेफ्ट में लड़ाई चल रही है, राइट में लड़ाई चल रही है, आपके सामने लड़ाई चल रही है, किसी का अटैक कहीं चल रहा है, कहीं आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, कहीं मोटर, यू नो इट्स केओस. सो फॉर यू टू इमेजिन कि मैं उन 17-18-20,000 फीट वाली जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में जो जंगल है, उनमें रास्तों पे चल के तो आप आ नहीं पाओगे. यू विल हैव टू हैक द ट्रीज एंड मेक वे फॉर योरसेल्फ. एंड वो जो टेम्परेचर है वो सब जीरो टेम्परेचर से है, रात को बहुत ही ठंडा हो जाता है. आप क्लाइमेट से लड़ रहे हैं, एडवर्सरी से लड़ रहे हैं. यू हैव टू एंश्योर कि ब्लू ऑन ब्लू आपकी पार्टी आपको ना गोली मार दे, आईएफएफ करना है. देयर आर 50 थिंग्स. तो स्नाइपर सपोर्ट नहीं है इंडिया में, स्नाइपर सपोर्ट इंडिया में होती है. देखिए, स्नाइपर इज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट एंड इट शुड बी ऑर्गेनिक टू एनी स्पेशल फोर्स. मतलब मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ आर्मी स्पेशल फोर्सेस को. इट कुड बी पुलिस स्पेशल फोर्सेस, इट कुड बी पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्सेस, इट कुड बी मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस. स्नाइपर का होना इंडिस्पेंसिबल है किसी भी सब यूनिट में. क्या वो हर कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट होता है? नहीं होता है. सो क्या आप एक टेम्पलेट को फॉलो करके अपने ट्रूप्स को इक्विपमेंट देते हैं? नहीं होता ऐसा. आपके पास होना चाहिए ऑथराइजेशन में, whether you want to carry that weapon, whether you want to carry Carl Gustav in a jungle scenario in northeast, that's a separate question. उससे डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं. बट क्या होना चाहिए आपके पास? होना चाहिए आपके पास. राइट. सर आपके एक फैन का सवाल है फ्रॉम गुवाहाटी. व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑल अबाउट नोइंग योरसेल्फ. जैसे हमने बात की ना अभी कॉन्वर्सेशन में, लुकिंग इनवर्ड्स. हम मानते हैं ना अपने धर्म में, अपने कल्चर में, कि हम सब में भगवान है. वी हैव एन एसेंस ऑफ द ऑलमाइटी, द यूनिवर्सल एनर्जी. So if you are a small part of the universal energy and you are carrying that small little God in yourself, how can you not respect yourself? The only thing that is stopping you is not looking inwards, not having enough time for introspection. Once you look inwards, obviously you will respect yourself. You are a human being. You have responsibilities. आप इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं इस दुनिया में. Why will you not have self-respect? Right. That is how I see it. एब्सोल्युटली सर. सर नॉर्थ ईस्ट में अगर हम वापस थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो वी सी इंसर्जेंसी प्रॉब्लम देयर सिंस 1950s. नागा प्रॉब्लम स्टार्टेड and eventually other insurgencies picked up. NACN, IM, then it became Khaplang, which separated. In Assam we Correct. have the Ulfa Independent, Ranjan Alpha, Dayamari. yes. Then we have Bodoland, Paresh Barua and all these people. So how do you see what is like Naga insurgency? We call the mother of all insurgencies. So what I understand is there is more to it than meets the eye. It is not just brute force they are using. They have agendas, they have issues which are unaddressed. So what is your, because since you have served quite a bit, so for someone who is not aware and who is just a beginner in this field or wants to know about it, I would want you to break a few cliched notions for them कि इंसर्जेंसी का रूट कॉज क्या है और लोगों की जेन्युइन वहां पे प्रॉब्लम्स किस तरह की फेस करते हैं. देखिए, इंसान के ना वेरी नेचर ऑफ इंसान इज टू एक्ट लाइक अ गैंगस्टर. मतलब जहाँ पे एक्सट्रीम डेवलपमेंट होगा गुड़गांव में,
वहाँ भी गैंगस्टर्स हैं, किलिंग हो रही है, उनके अपने डिमांड्स हैं, है ना, कि हमें बिल्डर्स, यू ओ अस दैट मच मनी। मुंबई में भी था। एंड जहाँ एक्सट्रीम गरीबी है, वेयर पीपल आर फाइटिंग फॉर द बेसिक्स, वहां भी रेजेंटमेंट होगा। यहाँ पे रेजेंटमेंट नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, स्पेक्ट्रम के दोनों तरफ क्राइम है। मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ एक क्रिमिनल को इंसर्जेंट से, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भी जाने जा रही है लाइफ जहाँ पे एक्सट्रीम पैसा है, और जहाँ एक्सट्रीम पैसा नहीं है वहां भी जाने जा रही है। बट व्हेन आई कम टू दिस पार्ट, बिकॉज वो पार्ट पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, दैट इज समथिंग टू डू विद पुलिसिंग, राइट अर्बन सर। एरियाज में जो हो रहा है। इंसर्जेंट का ओरिजिन क्या है? इंसर्जेंट का ओरिजिन है डिससेटिस्फैक्शन। Dissatisfaction with who? Dissatisfaction with the government. एब्सोल्युटली सर। Dissatisfaction why? Dissatisfaction because he feels left out. He feels neglected. He feels the government has been impartial, has been partial, sorry. He feels he is a part of the country, but he is not given what he is entitled to. So, and obviously, when there is a vacuum, some external agency will fill that vacuum. अगर कंट्री में वैक्यूम है गवर्नेंस को लेकर, तो उपद्रव मचाने के लिए दी फॉरेन कंट्रीज विल जंप इन। एंड 60s की तो कंडीशन आप जानते हैं। 62 में लड़ाई हुई थी, 65 में लड़ाई हुई थी। उस टाइम चाइना में खुद उथल पुथल चल रही थी कुछ कुछ साल पहले। मतलब माओ जेडोंग माओ हिमसेल्फ जेडोंग का वाज, वो सारा। हाँ, मतलब माओ जेडोंग के अपने प्रॉब्लम्स थे स्टालिन स्टालिन के साथ, और इधर ताइवान अलग हो रहा था, वियतनाम के साथ ठीक नहीं चल रहा था। सो चाइना को एक वैक्यूम दिखा नॉर्थ ईस्ट में कि ये लोग मेनलैंड कंट्री से अलग हैं, इनके बिलीफ सिस्टम्स अलग हैं, और इनका वॉरियर वो रहा है, कल्चर रहा है। ईच ट्राइब, नागा के जो 10-12 ट्राइब है, मेन ट्राइब्स, उनके अपने वॉरियर वो है, एट्रीब्यूट्स हैं, पहनावा है, वेपन है, एंड ऑल ऑफ देम टेक इक्वल प्राइड इन देयर ट्राइब्स। तो भैया आप रोड नहीं बनाओगे, स्कूल नहीं बनाओगे, उनको किसी मेन फंक्शन में, पॉलिटिक्स में इंक्लूड नहीं करोगे, जैसे बहुत टाइम तक लद्दाख का भी होता आया है। प्रॉब्लम लद्दाख सेम। में भी सेम। वी आर फॉर्चुनेट कि वहां पे किसी ने इंसर्जेंसी इन्फ्यूज नहीं किया या नहीं कर पाया, या पीपल वेर अवेयर कि भैया नहीं करना है ना। सो इफ देर इज अ वॉइड एनीवेयर, किसी भी पॉलिटिक्स में, बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द करप्शन इन द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ the government not prioritizing those people, that resentment will come out in one form or the other. एब्सोल्युटली सर। And the borders were so porous, and the borders are so difficult. You served there in the northeast part of the country. 10 में 5 मीटर नहीं दिखता दूर. They're so dense, the jungles. So sending weapons was not a problem. And anyways, Myanmar, I mean Burma में they were full of training camps, full of training camps. We had a complete list कि ट्रेनिंग कैंप में कितना स्ट्रेंथ है, क्या क्या वेपन है, कमांडर कौन है, सेल्फ स्टाइल्ड जो बोलते हैं, कैप्टन सेल्फ स्टाइल्ड, मेजर जो भी है वहाँ पे। उनके रैंक्स होते हैं, दे हैव द हाँ, एंटायर रैंक। हाँ। सो सर, जो फ्री मूवमेंट रजीम है जो म्यांमार बॉर्डर पे, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? वो जो इन्फिल्ट्रेशन में, क्या वो उसकी वजह से भी थोड़ा सा एक कंडुइट मिल जाता है, इजी कंडुइट? हाँ, यस, अब तो बंद हो गया है, अब तो बंद कर दिया है, महीने हाँ भर पहले आई रिसेंटली। थिंक। हाँ, हाँ रिसेंटली। it is very easy for somebody to come from this side to that side to this side, because northeast में it is very very difficult. Best of your aircrafts will not have any thermal image. इतना dense जंगल है, इतना वो है, undergrowth, एंड बेसिकली रेजेंटमेंट है। आप स्कूल बना दीजिए, मेडिकल फैसिलिटीज बनाए, सबसे पहले तो रोड बनाइए। वंस यू मेक द ब्लडी रोड्स एंड यू अश्योर पीपल ऑफ गुड एजुकेशन एंड गुड हॉस्पिटल्स, क्यों नहीं होगा? क्यों? व्हाई विल समबडी गो एंड ब्लडी पिक अप अ वेपन एंड गो टू द जंगल्स? क्यों करेगा? कोई पागल है आदमी? कोई है कोई, मतलब पागल है? उसको स्कूल मिल रहा है, उसको हॉस्पिटल मिल रहा है, उसको पता है कि मेरे पढ़ाई करने के बाद मुझे यहाँ जॉब मिलेगा, या आई कैन go to other parts of the country to bloody find a job. कोई क्यों नहीं करेगा? Why will? या गवर्नमेंट की तरफ से अगर सपोर्ट मिले कॉटेज इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी स्टेट है, you देखिए the number of cottage industries in हिमाचल प्रदेश, and you see the number of small scale industries in northeast, it is almost nil.
Things are सर changing. एक और जो प्रॉब्लम हमने नॉर्थ ईस्ट में जो देखी, टी जो इंडस्ट्री, टी गार्डन्स बहुत है वहाँ पे। अभी वो जो टी गार्डन लेबरर्स को है, मतलब व्हेनेवर यूज्ड टू विजिट देयर, तो उनका जो वेज मिलता है दैट इज मिनिमल, 130 140 रुपए मिलता था, अब शायद थोड़ा बढ़ा दिया उन्होंने। और दूसरी एक और चीज है जो रिलेटिव इनसिग्निफिकेंस जो उनको फील होती है, लाइक माय कलीग्स व्हेन आई वाज इन असम, माय कलीग्स फ्रॉम असम, दे वुड फील कि यार हमारी हिस्ट्री तो पढ़ाई नहीं जाती है, हमें पता ही नहीं है। लचित बोरफुकन की बात अभी हम कर रहे हैं, तेजपुर में जब मैं पोस्टेड था उनका एक स्टैचू वहां बना है, ही वाज अ वॉरियर, तो उनके बारे में पता ही नहीं मेन स्ट्रीम को। और इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात बताऊं, व्हेन सिंस वी वर्क देयर, तो हमें वो चीज अब लगती है इट्स वेरी नॉर्मल, बट व्हेन वी वर टू गो देयर, माय फ्रेंड्स वुड टेल मी यार कहाँ जा रहे हो तू, मतलब इट्स अ वेरी इंसर्जेंसी है वो। सो द थिंग इज, वो जो मिसकंसेप्शन ब्रेक करना भी कहीं ना कहीं शायद जरूरी है। बिल्कुल, आज सोशल मीडिया का जमाना है। देर आर 101 थिंग्स दैट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल, बाय द इन्फ्लुएंसर्स, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, किसी भी डोमेन में है। हमको वो बैरियर, just because somebody has mongoloid features, somebody is fairer than you, somebody prefers eating pork, you say कि भैया नहीं नहीं नहीं, तू तो कुछ और है, ऐसा है वैसा, भैया then you are a bloody idiot, you are an idiot. They are so kind people, sir. They are so kind people in the It Northeast. is everywhere. A North Indian trying to pull down a South Indian की, तू तो डोसा खाता है, और a South Indian looking at a North Indian की तुम तो inferior culture हो. It is ये dumb है, ये it is the dumbest way of assessing people culture, looking at ये, इससे बुरा perspective हो ही नहीं सकता। So we are also racist. हम भी racist हाँ, हैं। सब हम, you should be, अरे भाई अगर एक कल्चर इतने सालों 100 सालों से एक जगह पनप रहा है, मतलब सक्सेसफुली एग्जिस्ट कर रहा है, यू शुड बी इंक्विजिटिव कि भैया आप लोग कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू पीपल सो, आप लोगों को कैंसर नहीं होता है, एग्जांपल बता रहा हूँ, कम होता है नॉर्थ ईस्ट में, लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं होते, आप लोग बिना पेस्टिसाइड्स और बिना फर्टिलाइजर के ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाते हैं, तो मे बी Right, right. दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू देयर स्किन टोन, मे बी दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू देयर टू देम नॉट हैविंग डिजीजेस, सो मेनी babies are still born in their houses, so less people are handicapped, so less people, आप देखिए अगर आप मेनलैंड और इंडिया और Absolutely. चेक स्नेक के उस तरफ के लोगों को देखें, देयर आर Mhm. 100 थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम देयर कल्चर, देयर सिविलाइजेशन। उनका रहन सहन देखिए, साफ सफाई देखिए, छोटे घर को कैसे डेकोरेट Lavish, करते हैं वो देखिए। lavish lifestyle है सर उनका, तो lavish यस एकदम। यस, इतने फिट होते हैं, बार बार पहाड़ ऊपर नीचे चढ़ के, हमेशा हैप्पी रहते हैं। नहीं, आपको वो 100 चीजें नहीं देखनी है, आपने वो 4 चीजें देखनी है जो आपसे सिमिलर वो नहीं है। लेंस बना लिया ना सर, लेंस से देख रहे हैं ना आप, एक दैट लेंस इज द आपने, प्रॉब्लम। that's big, that's a big right. मुगल्स को इतनी बार हराया वहां, गुवाहाटी, आई only मीन ब्रह्म। only place है अहोम किंगडम वहां पे है, that is defeated मुगल्स। एंड अगर जो लोग मतलब नहीं आए नॉर्थ ईस्ट, आई मीन लेट इट बी अ प्रमोशनल मैसेज आल्सो फॉर द नॉर्थ, गो एब्सोल्युटली, विजिट देयर, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्लेस, गो विजिट नॉर्थ ईस्ट में, शिलोंग है, नागालैंड, मणिपुर, ब्यूटीफुल प्लेसेस, गो एंड विजिट एंड नो फॉर योरसेल्फ व्हाट दोस पीपल आर। सर एक छोटा सा इंसिडेंट, जैसे आप कहीं दुकान पे भी जाते हो नॉर्थ ईस्ट में, whenever you pay and they pay you the change back, they will like be like this, लीजिए सर, I mean that's so much respect and courtesy। हमारे वेरी यहाँ गुड नहीं है, पीपल। हमारे यहाँ लोग इतने courteous नहीं है। तो आई थिंक ये जाके मुझे लगता है जाइए वहां पे नॉर्थ ईस्ट में, सीखिए, सी फॉर योरसेल्फ। आई थिंक सरकार को एक टूरिज्म, एक प्रमोशनल टूरिज्म करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में लोगों को लेके जाए, उनको बताएं कि दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ अ कंट्री एंड लाइक दैट। गो विद एन ओपन हार्ट। जैसे आप इटली जाके पिज्जा खाते टाइम नाक नहीं मोड़ते ना, और बोलते नहीं कि मुझे छोले कुलचे दे दो इटली में जाके, यस सिमिलरली यस। नॉर्थ ईस्ट में जाके जाके उनके लोकल कुजीन टेस्ट करिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं, आप नहीं खाना चाहते, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट मुंह मत मोड़िए कि यार आप लोग ये कैसे खा रहे हो। अरे भाई वो खा रहे हैं, दे बीन सर्वाइविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, दे आर हेल्दियर देन यू, सो मेनी ऑफ देम आर फिट, है ना। तो सीखिए, गो विद एन ओपन हार्ट कि भैया मैं आई हैव कम टू एंजॉय, आई हैव कम टू लर्न, आई हैव कम टू एब्जॉर्ब। If I don't like something, it's okay. It's okay. You might not like 10 things in my culture. I might not like 10 things in your culture. You don't have to copy paste everything or absorb, I mean, like everything. But go with a bloody open mind.
Absolutely. That is, I think, that is very, very important to recognize that aspect as well. सर, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी अगर आपके हिसाब से इसको खत्म करने के लिए या मे बी थोड़ा कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है, या हम किस तरह से उनके जो मतलब 2-3 पॉइंट अगर आप बताना चाहें, उनको हम कैसे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं? बिकॉज वी कैन नॉट गो ऑन वेजिंग वॉर फॉर लॉन्ग टाइम. इवेंचुअली यू हैव टू ब्रिंग देम इनटू द फोल्ड. That is the eventually dialogue is going to be the way forward. So how do you gradually we can bridge that gap? नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी बहुत हद तक कम हो चुकी है. बहुत सारे पार्टीज ने ये पैक्ट साइन कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि भैया वी डोंट वांट टू फाइट एनीमोर फॉर गुड रीजंस. उनको अगर आप अपने उनके ग्रजेस को अगर आप एड्रेस करें, नॉट दैट दे ऑल देयर डिमांड्स कैन बी मेट. कल को तो कोई भी कुछ भी खड़ा होकर बोल देगा मुझे अलग स्टेट दे दो, मुझे अलग कंट्री दे दो, ऐसा नहीं हो सकता. बट इफ यू सी द जेन्युइन डिमांड्स, जैसे मैंने बोला कि इफ यू मेक रोड्स फॉर देम, इफ यू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम, इफ यू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ आई से एम्प्लॉयमेंट. आप 4 मेडिसिन की फैक्ट्री बनाइए वहां, 4 वाइन मेकिंग वो बनाइए, 4 अचार मेकिंग कंपनी बनाइए, 4 फ्रूट्स से जैम मेकिंग वो बनाइए. वहां पे मिनिमम सैलरी, एग्जांपल बता रहा हूँ, मिनिमम सैलरी 25-30 हजार रखिए. उन्हीं के मैनेजर्स को हायर करिए. नॉट ऑल ऑफ देम, आई एम जस्ट सेइंग, generate that idea. I mean execute that idea जिसमें you are generating revenue for the people. कोई जंगल में जाके क्यों हथियार उठाएगा? किस चीज के लिए लड़ेगा? किस आइडियोलॉजी के लिए लड़ेगा? वो देखता है मेरे गांव में रोड है, मेरे गांव में इंटरनेट है, 5G है, मेरे गांव में स्कूल है, मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर अच्छा कॉलेज है, मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर इंडस्ट्री है जहाँ पे जाके मैं 30,000 रुपया टू बिगिन विथ एग्जांपल बता रहा हूँ कमा सकता हूँ. काम करके 25,000 कमा सकता हूँ. कोई क्यों हथियार उठाएगा? कोई क्यों आपको वैसे आड़ी टेढ़ी नजरों से देखेगा? वो देखेगा कि मेरे जैसे लोग बाहर जाके डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में है, आर्मी में है, मिनिस्ट्री में है, स्पोर्ट्समैन है, वो ब्रिंगिंग मेडल्स फॉर द कंट्री. कहाँ फिर इंसर्जेंसी का स्कोप ही कहाँ है? मतलब व्हाई विल देन समबडी पिक अप अ वेपन? कोई हथियार उठा के किसी को किडनैप करेगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग. इंसर्जेंसी फिर कहाँ बचेगी? राइट, राइट. यही चीज जैसे हम नक्सल प्रॉब्लम की भी बात करते हैं, विच स्टार्टेड विद चारू मजुमदार, कानू सान्याल 1967 में, फिर बाद में वो बढ़ते 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 पशुपति से तिरुपति तक फैल गया. दंडाकारण्य रीजन जो है आपका, अबूझमाल जो स्कोर एरिया है, दैट इज लाइक द कोर ऑफ नक्सल इन्फेक्टेड एरिया ऑल्सो, जहाँ पे 2-3 स्टेट्स के बीच में जो बॉर्डर वाला एरिया है, वहां पे एक तो स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है वहां पे, और उनके जो टैक्टिकल ऑपरेशंस है, TCOC ऑपरेशंस को लॉन्च करते हैं. ऑल्दो हम काफी अभी कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स भी लिए हैं. तो सर आप क्या इन दोनों इंसर्जेंसीज को, नक्सल एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट और जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, तो आप एक होलिस्टिक अगर हम, क्योंकि वी कैन नॉट बी सेफ अंटिल आवर बॉर्डर्स आर सेफ, वेदर इट बी कोस्टल बॉर्डर्स, हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, हम अपने वेस्टर्न, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल सारे फ्रंटियर्स की बात करें. आई थिंक एक ओवरऑल साइलोस बेस्ड अप्रोच से बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट लेसन्स लेके हम एक, that is how we have to move forward. We cannot keep Yes. investing our resources in only managing these things. There are a lot more that can be done. So what Yes. is your intake on that, this one, sir? अच्छा, I'll say I come from that place of the country, Dandakaranya. Raigada is Yeah, Raigad district. Raigada is in that zone only. See, Right. it is very very similar to वही same resentment against the government. लोग अगर फैमिन से मर रहे हैं, लोगों के लिए अगर आपने हॉस्पिटल नहीं बनाया 20 किलोमीटर के रेडियस में, लोगों को अगर बेसिक खाने पीने की पूर्ति नहीं हो रही है, और लोग देख रहे हैं कि उनके आसपास 100 kilometers from their place or 300 kilometers from their place गवर्नमेंट काम कर रही है, या उनको पता चल रहा है कि गवर्नमेंट को फलाना करोड़ रुपए फंड असाइन हुए थे एंड एवरीथिंग इज गॉन इन द पॉकेट्स ऑफ द जो भी ऑफिशियल्स. क्यों नहीं होगा रेजेंटमेंट? क्यों नहीं होगा? मुझे भी गुस्सा आएगा. आई वुड ऑल्सो लाइक टू शो माई डिसग्रंटलमेंट. तो किसी ने हथियार उठा लिया, कोई क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़पेपर में कॉलम लिखेगा, कोई जाके माइक के साथ रिपोर्टिंग करेगा, कोई होगा हथियार उठा लेगा. सो
मैं तो हमेशा यही मानता आया हूँ कि जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करो, कि डिसग्रंटलमेंट क्यों है। डिसग्रंटलमेंट है डेवलपमेंट ना होने की वजह से, अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से, चाहे वो लाइवलीहुड का हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एजुकेशन हो। So you should, when I say you, it is the government. If you address the basic issues, human issues, फिर स्कोप कहाँ रह जाता है इसका हथियार उठाने का। उसके बावजूद इफ सम पार्टी टेल्स आप मोबाइल टावर लगाना चाह रहे हैं, वो लगाने नहीं दे रहा, आप रोड बना रहे हैं, वो बनाने नहीं दे रहा, फिर तो यू गो ऑल आउट ऑन देम। उनकी फिर कमर तोड़नी चाहिए। यू एम्प्लॉय एवरीथिंग इन योर अंडर योर विद इन योर पावर्स, अंडर अंडर द अम्ब्रेला, एयरफोर्स, आर्मी, स्पेशल फोर्सेस, यू एनहाइलाइट देम कि भैया नाउ दैट वी हैव एक्सेप्टेड एज आवर फॉल्ट एज अ गवर्नमेंट, एंड नाउ ऑनवर्ड्स वी वांट टू वर्क फॉर द पीपल genuinely. We want to build roads, we want to build schools, we want to give you the basic access to bloody water या fertilizer जो भी है, मतलब फार्मिंग के लिए। एंड हम आप अपनी गलती मानते हैं, आपको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। उसके बाद अगर कोई एंट दिखाता है, यू गो ऑल आउट एंड यू एनहाइलाइट देम, सिंपल। दैट इज फॉर द इंसर्जेंसी एंड नक्सलिज्म। यस, मिसगाइडिंग वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, तो वो भी। हाँ, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, सो दैट इज फॉर द इंसर्जेंसी एंड नक्सलिज्म, जिनका ओरिजिन है dissatisfaction because of the corruption with the government machinery and their inefficiency, and they're not providing them with the basics. Right. Kashmir is a completely different ball game. कश्मीर में एक फॉरेन कंट्री अपने मिलिटेंट्स को इन्फ्यूज कर रहा है आपके लैंड में, बिकॉज दैट फॉरेन कंट्री पाकिस्तान थिंक्स कश्मीर शुड बी देयर्स, क्योंकि उन्होंने मांगा और हमने नहीं दिया। एंड उन्होंने रिलीजन कार्ड को भी बहुत अच्छे से खेला। कश्मीर 80s 90s में पीपल women they were all wearing western clothes, मतलब कहने का मतलब यह था they were free to do what they wanted। किसी को बुर्का पहनना था बुर्का पहनिए, किसी को वेस्टर्न कपड़ा पहनना है वेस्टर्न कपड़ा पहनिए, आप पे किसी रिलीजियस टेम्पलेट को नहीं चिपकाया जाएगा। बट आईएसआई ने बहुत एफिशिएंटली लोकल्स को भड़काया, पैसे इन्फ्यूज किए, उनके लोकल गवर्नमेंट ने जो भी फैमिली बेस्ड, मैं नाम नहीं लूंगा, इनकी चला रहे थे पॉलिटिक्स फ्रॉम वन फैमिली टू द अदर ऑल्टरनेट। क्या किया उन्होंने कश्मीर में, क्या किया लोकल कश्मीर के लिए? कहाँ है कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट? एक यूथ बड़ा होके क्या करेगा कश्मीरी? टूरिज्म करेगा, गाड़ी चलाएगा, होटल उसमें जाएगा, या तो फौज में जैकलेट इन्फेंट्री में या जैकरेट में कहीं जाएगा। अगर वो नहीं कर पाया, अच्छे स्कूल नहीं बनाया आपने कभी, तो जब आपने डेवलपमेंट किया ही नहीं, आपने जानबूझकर उसको डाउन प्ले किया कि ये यूथ ऐसा ही रहे, इसको मेन स्ट्रीम में क्या चल रहा पता ना चले, मैं जो बोलूं उसको वो सच लगे, और इस पॉलिटिक्स से मैं फायदा उठाऊं, मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट वो हो, टर्मोइल चला रहे, तो भैया क्या हो सकता है? राइट। तो ये तो प्रॉब्लम सर है अभी आई थिंक 370 के बाद थोड़ा तो काफी असर पड़ा है चीजों में, काफी असर पड़ा है, काफी असर पड़ा है। टाटा स्काई ने काफी असर, बहुत सारे लोग ये टॉपिक डिस्कस नहीं करते हैं। टाटा स्काई वाज अ रेवोल्यूशन। बहुत सारे लोगों को नॉर्थ ईस्ट में या जेएंडके में लगता था कि द मेनलैंड इंडिया उनको हेट करती है। जब टाटा स्काई आया, उन्होंने देखा मेन स्ट्रीम मीडिया, उनको लगा कि ऐसा नहीं है। कुछ बुलीज जो है, few rotten apples are everywhere, a few black sheep bullies, but most of the India is not like that. They don't see us as enemies or belligerents या people who are hostile. ऐसा नहीं है। Tata Sky has done a wonderful job। छता लगा के जब लोग चैनल्स देखने लगे, मूवीज देखने लगे कि अरे ये तो आमिर खान को इतना लाइक करते हैं, ये तो मुस्लिम है, अरे इनका तो मुस्लिम से कोई बैर नहीं है, शाहरुख खान तो बिगेस्ट सुपरस्टार है। इंस्टेड ऑफ बिग कि प्रेसिडेंट तो मुस्लिम है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो इनका मतलब, इसका मतलब इनका मुस्लिम से कोई बैर नहीं है। पॉकेट्स में लड़ाई झगड़ा होता है, वो अलग चीज है। तो काफी माइंडसेट चेंज हुआ था उससे। Actually, sir, it was a lot of beautiful, lovely insights through a variety of topics we discussed, from Northeast to nationalism to youth. And for me also, it was a very, very enriching experience.
I would keep on. I want to keep on talking to you and learning from your wisdom. But since you have a sore throat, I will not hold you for long. Uh, before we wind up, sir, यूथ के लिए आई वुड वांट यू टू एक स्ट्रिक्ट एडवाइस, बिकॉज यूथ आपको सुनते हैं, आप उनको एक स्ट्रिक्ट एडवाइस क्या देंगे कि भाई ये सही रास्ते पे चलो, ये काम करो और फ्लैम्बियंस में मत जाओ, मतलब व्हाट इज योर मैसेज टू द यूथ, बिकॉज role models like you have an influence over youth and they listen to you, so I would want you to impress your message on them to follow the righteous path, एक सही रास्ते पे चलने के लिए। और प्लस एक और चीज सर, मैं एक ड्रग डी एडिक्शन पे आई एम डूइंग सम वर्क ऑन दैट एज वेल, तो मैं चाहूंगा आप उसके लिए भी, अगर जो इसमें थोड़े से लिप्त हो रहे हैं या भी उसमें घुस रहे हैं या जो घुस चुके हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए अगर आप मैसेज दे सकेंगे, उस चीज से बाहर आए, देश सेवा में लगे, देश प्रेम की भावना से आगे बढ़े, तो व्हाट इज योर मैसेज सर? देखिए, जो ड्रग्स में जा चुका है उसको तो no amount of my sermons can bring him back. It is a biological process. वो उसको it will take doctors and it will take a rehab thing. जो जा चुका है, Absolutely. जो जाने की सोच रहा है, जो सोच रहा है कि मैं वास्तविकता से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ और हेलुसिनेशंस में और उसमें डाइव करता हूँ, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वास्तविकता से कनेक्शन तोड़ना बहुत जरूरी है, तोड़ना भी चाहिए भैया। आई ऑल्सो ड्रिंक एट टाइम्स, I also at times take a break from my family, go out on a walk, listen to some music, talk to some of my good friends. That is very, very important. But for you to bow down and become a slave of some bloody chemical and submit yourself completely, absolutely, ये तो भैया it is not done, मतलब not understood. And मेरा जो अंडरस्टैंडिंग ये है वो इसलिए भी होता है कि many people lose the purpose. आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि मैं अगले 10 सालों में 15 सालों में ये करना चाहता हूँ, एंड देयर शुड बी थाउजेंड्स ऑफ शॉर्ट गोल्स, स्मॉल गोल्स, कि हफ्ते भर में मेरे को ये करना है, 10 दिन में मेरे को ये करना है, महीने भर में मुझे ये करना है, एंड यू शुड चेज दोज ड्रीम्स, यू शुड put all your efforts in reaching those milestones. Whether you reach or not is a different story. If you don't reach, it's okay. At least you had the, yes, at least you had the guts to set goals. आपने उनका पीछा किया, अपने अपने सपने देखे, सपनों का पीछा किया, नहीं पकड़ पाया, इट्स ओके यार। आई मीन हर कोई जेफ बेजोस और हर कोई एलॉन मस्क और बिलियनर नहीं बन सकता। एंड बिलीव यू मी, मैंने मतलब माय जॉब, नाउ दैट आई एम स्विचिंग माय जॉब, I was very close to a billionaire. Very, very difficult life. आप देखते हैं उसको अलग लेंस से। Their life is not easy. Very, very difficult. Very challenging. Very demanding. So बोलते हैं ना, the grass is always greener on the other side. कि दूसरे का वो हमेशा अच्छा लगता है ना, दूर के ढोल क्या, We might as well water our own grass. It will also get greener. ढोल सुहावन लागे बाजे जो भी है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, शॉर्टकट्स को मत अपनाइए, धीरे से जाइए, आहिस्ते जाइए, संभल के जाइए, बट कंसिस्टेंसी रखिए। आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, 5 ईयर का गोल बनाइए। आप बॉडी भी बनाएंगे, स्ट्रेंथ भी रिटेन करेंगे, और जब तक आप 70 साल के नहीं हो जाते तब तक आप ये चीज करते रहेंगे। आप नॉलेजेबल बनना चाहते हैं, बुक्स पढ़िए, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को सुनिए। आप अफगानिस्तान वॉर को सोवियत वेटरन के लेंस से सुनिए, मुजाहिदीन के लेंस से सुनिए, पंजशीर क्या नाम था, कर्नल द लायन ऑफ पंजशीर, में नाम भूल रहा हूँ, उसके पर्सपेक्टिव से, ताजिक, उनके पर्सपेक्टिव से सुनिए। यू हैव टू हैव दैट क्वालिटी ऑफ हर चीज को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सुनिए, समझिए। उसके बाद अगर आपको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, कोई डिसीजन लीजिए, नहीं है तो उन सभी पर्सपेक्टिव्स को अपने जगह पे रहने दीजिए। कोई आपको एब्सोल्यूट गुड, बैड, अगली, ब्यूटीफुल में डिस्टिंग्विश करने के लिए, ब्रैकेटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा है। दैट इज माय एडवाइस। थैंक यू सर, दैट वाज रियली लवली। एंड मुझे उम्मीद है कि जो भी यूथ आपको सुन रहा होगा,
अगर आपकी बातों को अपनी लाइफ में इम्बाइब करेगा तो अपनी लाइफ को एक बेहतर रास्ते पे लेके जाएगा और भारत के आने वाले जो अमृत काल में अपनी योगदान देने में पूरा एक एफर्ट लगाएगा। तो उम्मीद है सर आपकी इस आपकी बातों से, आपकी विजडम से, all of those who have been listening, they have become richer, wiser and more have a nuanced understanding of various issues जो देश के विभिन्न इलाकों में हमने डिस्कस की और पर्टिकुलरली यूथ को लेके जो हमने बातें डिस्कस की। आई होप दे टेक दीज थिंग्स सीरियसली एंड एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ बिल्डिंग स्वर्णिम भारत। एक हमारा जो विश्व गुरु का हमारा जो प्लान है, जो हमारा जो गोल है, हम उसको अचीव कर पाए। So thank you so much, sir. Thank you for coming on the podcast. It's been an honor and privilege, and I'm really grateful to you for coming on the show, sir. Thank you for inviting me, and the feeling is mutual. I'm more than honored and privileged to have the slot with you. You asked so many, I'll say, good, nice, mature questions. क्योंकि I like मुझे वो सवाल पसंद आते हैं जिसमें मेरा ओपिनियन हो. It could be right, it could be wrong, it could be biased, it could be from one perspective, but at least I am able to voice my opinion. And if that Absolutely, sir. opinion can help people, why not? And I completely agree. ये देश जो है जो यूथ है उनके कंधों पर चढ़ के आगे जाएगा. आगे जाएगा। बाकी देशों में भी यही हुआ है, हमारे देश में भी यही हो रहा है. वी आर ऑलरेडी इन दैट जर्नी. On the हमने top. वो कदम रख लिया है. एंड अगर आप जैसे लोग मिलेंगे जिनका ये एम है कि यूथ को सही डायरेक्शन में प्रोपेल करना, I think India 2050 तक will be back in that era जब हम 33% इकोनॉमी कंट्रोल करते थे वर्ल्ड की. Absolutely, Back sir. back in With those all the days. glory, with all the Yes, glory, and yes. we come back to world leader दोबारा बनना, and with leaders like you, sir, I am sure that definitely is going to happen. I'll be sipping whiskey on my easy chair, seeing the country go accelerate in the right direction. Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much. So, ladies and Thank you. gentlemen, this was Leader Avinash Sani on this podcast, and we'll be back soon with another version of a very, very interesting talk with another champion who has illuminated our lives with his life lived extraordinary. Thank you so much. Signing off of Jyot Singh. Thank you, Jai. Thank you, sir.